So we have completed 150, 165, and now we are getting for 166. What else we say? Allow with this fixation of time limit for legal remedy is laws. Law of arbitration, law of limitation, law of criminal court. So you have time limit for every case, be it civil case or criminal case. So there will be a specific period of time, 1 month, 2 months, 3 months. So within that period, you have to file the case. Else, afterwards, what happens after you file after that date? After the elapse of the time, what will happen if you file the case? Will it be admitted? See the question, what it says, a law which deals with the fixation of time limit for legal remedy is. So what it says that there is fixation time limit for legal remedy, isn't it? That is what it says. समझ में आया? कोई भी लॉ के लिए, कोई केस फाइल करने के लिए लिमिटेशन रहता बोल के बोल रहा, सही है? लिमिटेशन रहता रहता कल बोला था, एग्जाम्पल क्या है बोलिए? लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन पढ़े थे कल, कल बोला था मैं इसके बारे में थोड़ा। तो वो किस में आता? सिविल प्रोसीजर कोड में आता, आर्बिट्रेशन में आता, लिमिटेशन में आता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आता। देखिए, लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होता? BN बना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रहता क्या आखिर? आपको आईपीसी रहता, आईपीसी था पहले, अब BNS बन गया, राइट? तो आईपीसी में क्या रहते हैं? सेक्शन रहते जो भी क्राइम करे, और क्या रहता? उसका पनिशमेंट रहता, कितना पनिशमेंट देना है उसको, राइट? तो कैसा करना वो केस, कैसा? अगर पनिशमेंट तो बोल दिया उसमें, बतला दिया, और दूसरा क्या होगा उसमें? पनिशमेंट क्या ऑफेंस करा और क्या पनिशमेंट कितना देना है, हो गया। तो दूसरा उसके बाद क्या रहता? कैसा चलाना केस को, क्या किस में रहता वो? सीआरपीसी में रहता, सीपीसी में रहता, किस में रहता? जी बोलिए। ये सिविल हो गया, ये सिविल प्रोसीजर कोड है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो दोनों में से किस में रहता? क्राइम अगर हुआ तो उसका प्रोसीजर किस में रहता? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में रहता, सिविल प्रोसीजर कोड में रहता? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में रहता। तो
जा रहा तो क्या होता, टाइम एक 90 डेज टाइम रहता, उसका लिमिटेशन रहता 90 डेज 1 मंथ वॉट एवर लिमिटेशन विल बी देयर। तो वो अगर टाइम हो गया उसे टाइम के बाद फिर आया तो उसके बाद क्या होता आपका टाइम बार जैसा रहता, उसमें भी आप दालेबाज से अगर चेक फाइल करें तो उसके बाद आप पैसे रिकवर नहीं कर सकते। if at all you want to recover that amount you need to file within that time frame as specified by the law, right? So you can file the check bounce case and you can approach the court of law and you can recover your amount whatsoever. He will have to pay the check amount and apart from that another amount he has to deposit, that is a separate thing. So there will be fixation of time and time limit. Online students, can you hear me? Khalid, they can reply to us. रिप्लाई कर सकते हो, कुछ रहा तो पूछ सकते बात, स्पीकर ऑन है उनका, ऑन है, ओके तो ओके I think online students are also hearing the class. Shall I repeat this section or do you want to continue me further? How many students are online? Sir, repeat this, please. Yeah, there was an issue, that's why I'm asking. So for every law there will be time limit, be it civil or criminal, small or big. There will be time fixation of time limit. Example I have given of check bounce case, wherein you have time limit 1 month, 3 months time limit. What will be there stipulated as per the amendments time to time. So once the time is finished, what is the procedure of the check bounce case? Can any of you tell me from online class members? Check bounce का procedure क्या रहता? Check. What is check? I think you are all aware of check, right? Check क्या रहता मालूम है ना आप लोगों को? Yes, yes. So if there is no amount insufficient balance, the person who has issued you the check, so what will be the next step? Check bounce हो जाएगा, and once the check got bounced, Exactly. the person will be having eligibility to file the case in the court. Right. And So yeah, check bounce. So that will be, there will be time period, right? correct, Within that correct. time period, you need to recover file within that period of time. You need to give him notice, and whether or not he has replied you to the notice. Thereafter, when if he does not give within the time frame, again you will file in the case in the court, right? And you can recover that amount within that time frame only. If what happens if you does not file the case within that time limit 1 month or whatsoever, you cannot recover your amount, right? So you don't have any right under the criminal procedure code to recover the amount legally. However, the court considers that you cannot recover, but there is still liability to pay the amount, right? So सर likewise in civil सर also. थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। बोलिए बोलिए, what is your doubt? सर ये जो आप बोल रहे हैं इसमें टाइम पीरियड के बाद अगर हम लोग को नोटिस दे रहे तो उसका है नहीं, किस चीज का है ये? जी, हर एक का एक प्रोसीजर रहता है। मैं एग्जांपल चेक बाउंस का दे रहा हूँ। वाई? बिकॉज मोस्टली चेक बाउंस केस में क्या रहता है, डेट स्पेसिफिकली इट इज डीलिंग विद द बैंक, तो डायरेक्टली यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर विद स्ट्रिक्ट नॉर्म्स। 1 मंथ नोटिस पीरियड रहेगा उसका, उसके बाद आपको 1 मंथ में 1 वीक टाइम रहेगा, फिर 1 वीक में उसको फाइलिंग करना रहेगा, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट इफ इट डज नॉट कम विद इन दैट एम्बिट यू कैन टेक फर्दर स्टेप्स, राइट? Reply notice, he will send you reply notice once you file the suit notice. He will send you the reply notice. After that, whether or not he issue responds you in a positive way, you will file in the court, right? So what happens if you does not file the case in the court of law? You will lose your remedy to recover the amount, right? Even legally through the court of law. Yes, समझ में आ गया वहां तक? Likewise, you will have in the civil cases also for matrimonial cases. Limit for legal remedy is that comes under which procedure? Civil procedure code, arbitration, limitation, or criminal procedure code. What does it come under? Limitation, right? Then what is, you tell me now, what is criminal procedure code? What does it deal with? Criminal procedure code. Anyone from online, can you tell me? Criminal procedure code क्या सब्जेक्ट, क्या केस से और कौन से मेजर एक्ट से या सिविल प्रोसीजर आईपीसी से होता है या सीपीसी से होता है, किसको डील करता है? सीआरपीसी, Indian Penal IPC. Code, maybe IPC.
Yes, it is part of, once you get the offense, if a person commits the offense will be mentioned and his imprisonment or of imprisonment punishment will be mentioned, right? And following the procedure for the trial, procedure will be mentioned in the criminal procedure. So, however, fixation of time does not come under the criminal procedure code. Next, what is limitation of time? Law of limitation, right? It is having matching with this one, time limit. So, limitation, right? You will get exactly the answer in the question itself. The next, what is law of arbitration? I have given you example, I think, earlier. Arbitration, suppose that roads and buildings and bridges, what construction, if they are engaged, if you have given them on contract and they have increased the price due to the any increase in the fuel price or cement price or whatsoever material, so they will also increase the price, right? ऐसा होता नहीं होता? From online students I'm asking, there you can also answer the question. यस सर होता है। Hota. So why? Because even they does not want to bear the loss. Where can they recover the amount from? Is there any insurance company to recover that amount? No, there is no such insurance company like health insurance or vehicle motor insurance, right? So they will say that though we have made agreement or contract on so and so amount or tender passed, but due to the hike of the prices, we cannot go through that price. We have to increase the amount, and this is the amount expenses we have incurred additional charges. So what will happen? They will say, no, what we have also got the amount, we had that much only budget that was passed by the government or whatsoever the poor people, and whatever budget we have done, we cannot go beyond that. So there will be a clause will be there, arbitration clause will be mentioned. If at all there is any dispute, they will approach the arbitrator of their known or through the court of law, whosoever appointed by the court, right? Even if it is not mentioned, they will go to the court of, however, one person who is got the loss, he will go to the court, right? He will approach the court of law and he will file the suit against the person who is not clearing their dues, additional charges, right? If at all there is court or before the court also, if they will be having their hierarchy, particular department in their respective streams, like engineering department, government was also having engineering department, roads and buildings will have, example for you, roads and buildings department, so their own department will have arbitration clause, and arbitration they will be have arbitrators, experienced persons will be there, their advocates will be there from both the parties. So they will have a meeting and they will conclude the matter, they will decide whatsoever has happened, to what extent that has been done, and their mediation process will go on. So and so amount, not that much high, not that much low, and median procedure or amount will be settled, right? So that is called the arbitration. Arbitration is not only for this purpose, arbitration is also on the family cases, criminal cases, few petty offenses or some other offenses, arbitration will be done, right? So that also does not come under fixation of price. Then next, what is their civil procedure code? So does it come under civil procedure? What is the civil procedure code? What does it deal with? CPC. Land, real estate, land or It property. deals with फैमिली CPC. डिस्प्यूट भी आता सर। That is civil procedure code, right? Yeah. CPC. Unlike CRPC for IPC, you have CPC, civil procedure code. What does the note says? The law of limitation deals with the fixation of time limits within which a person must seek a legal remedy in a court of law. Next, it says if a legal action is not taken within that prescribed time, the remedy becomes time barred and cannot be enforced, right? Whatsoever loss have happened, whatsoever जो भी नुकसान हुआ आपका, either physically or mentally or monetary, पैसों का जो भी नुकसान हुआ, you cannot recover, right? Unless exceptions are there, suppose there is holiday, there is lockdown, or some due to some natural calamities, government will impose. Sometimes highways will be due to heavy rain, bridges will collapse, highways will be there. So natural calamities, heavy rains are there, and sometimes holidays, festivals will might come. So even in check bounce case, there will be time limit will be extended. Suppose today is the last date, Saturday. What is this week? Second Saturday is there. So from date fixed, the month ending will be on what is this month Saturday coming? Suppose it is 11th, right? So 11th, from 11th time will end, 30 days time will be ending. So you cannot, however, you cannot file on Saturday, court will be closed. On Sunday also court will be closed. So
the next working day will be deemed as working day and deem that last working day was Monday, right? So you can file a suit or case on Monday also. That are the exceptions. Or sometimes in case a person is kidnapped, so how can he register the case once he gets back or police through the assistance? After that, they can file the case, right? And some person is unconscious, there is grave injury attack on him or accident. So once he get the conscious, comes into consciousness, only then he can answer. So as to what happened exactly has happened. Meantime, FIR will be booked and statement will be recorded later on, right? So these are the conditions, these are the exceptions. Means सर what? Right. आप अभी चेक का एग्जांपल दिए ना, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई क्राइम में भी हुआ तो पहले रिपोर्ट नहीं करके अगर बाद में रिपोर्ट करे तो जब That भी is what लॉ ऑफ I'm telling. If लिमिटेशन. a person is kidnapped, so even if his family members or whomsoever they does not know, नो after सर, he मर्डर का अगर केस रहा तो, मर्डर का huh? अगर केस रहा, Like मर्डर a मर्डर का केस, मर्डर का. murder case is there, however, it will be reported unless his body is not found. His suppose he is dead in his apartment, flat or house, and people his some families abroad. He's staying alone, or he's staying staying some away in the other state or other district. And what will happen? Body is the decomposed. His will body will decompose, and this his neighbors will complain to the police that or the government department or the apartment owners watchman that you can smell outdoor smell is there. They will break open the door and they or person some will having friends daily meeting. When it does not come, they will go to his home and they will inquire, right? Anything, however, they will one or the other day they will be coming to know. Thereafter, the FIR will be booked and that thing goes on, right? जी ऊपर सर वाला तो फिर ये लॉ ऑफ लिमिटेशन में जब अब जैसा एग्जांपल आप जो दिए तो टाइम उसमें बार अब. yesterday wait a minute, this time bar tap ऊपर वाला कौन सा this I did not come ये अभी नहीं पढ़ा है मैं I thought I have given here, I have given another class. Now I'll be explaining this time bar depth. So it is also related that law of limitation only. Time bar depth. I've given you example also. I'll tell you now in brief. Yes, online some one of the students was having doubt. What was his doubt? Please go ahead. सर ये टाइम बार्ड का जो आप ये समझाने वाले हैं, Yeah. आप जैसा समझा है तो अगर कोई भी किसी को भी मर्डर हो गया, वो लोग फैमिली वाले रिपोर्ट नहीं करे, लेकिन बाद में इनजस्टिस हो रहा ना सर उनके साथ, जस्टिस You need कहाँ पे not. हुआ? You need not register a complaint. Police will that is somoto or cognizance will be taken whether or not you complain. Why? Because you have fundamental right. What is the fundamental rights? Right to life, isn't it? You have a right to life. So यस. government is the guardian of your life. So they will register. They will take care of life and life of an individual. And similarly, 44th Amendment was struck down. Right to life, that was also fundamental right that was struck down and that is became legal right, not the fundamental right. So the government does not come into and take cognizance if your land is grabbed or someone has made apart, constructed, taken your building, apartment, whatsoever. So government will be directly taking through the police, state government. They will register a case whether or you not inform the police and you cannot even compromise that matter. If you want to compromise, government does not listen to you and they will register a case and the case trial will go on. They will punish the accused. Next, is it ओके clear? सर. यस सर. Right. Time bar depth is one which is barred by the time. Time bar depth क्या है? जो है time से barred है, which cannot be demanded by the creditor, through the court of law. None of the above. ये none of the above छोड़ के all are correct answers, but in that specifically you need to know exactly what is the correct answer. See, time bar depth is which is barred by time. ये भी correct है answer. Next क्या बोल रहा? Which one can not be demanded by the creditor? इसके बाद क्या है? Which cannot be demanded by the, यहाँ तक सेम है देखिए, which cannot be demanded by the creditor through the court of law. You can demand the money with the creditor, but what will happen? You cannot extend through the any kind of illegality. You cannot force him, right? If you force him, he will go and complain against you, right?
you are threatening him, you are beating him, you are abusing him. But what is the legal remedy, legal course of action? What you can take? You can go through the court of law, and the amount he has taken, like example, promissory note will be there, right? एक promissory note बोल के एक पेपर रहता है, उस पर लिखा हुआ रहता है, उस पर डिटेल्स रहते हैं, कब पैसे लिए, कितने लिए, कब देते हैं, so all that things will be mentioned in that, and the persons will be signing, guarantors we can also sign that. So if the other person does not pay the amount, it will be like a check only, similar to the check only, but it will be different from check. What amount you have paid, you will be promising to pay. चेक में क्या होता है, बैंक में अकाउंट रहता है, बैंक विल से दैट he is not having sufficient account, then you will go to court of law, issue notice, and case will go on. Here promissory note, he will promise to pay the no, on the currency note it will be written, if you have seen, observed, that I promise to pay the bearer the sum of rupees so and so, right? So when giving someone the note or receiving the someone note, that means that person is promising, though he is not saying verbally, but it amounts that written form. He will be, when he is giving note, he is promising to pay you the giving. He is promising that he is giving you amount. So likewise, promissory note will be there, promising to pay the debt or the amount loan whatever he is taking on so and so time. What happens if he does not pay that amount on time? You can take legal course of action, right? And if he does not pay within the time frame and you did not approach the court of law, what will happen? That paper will become useless. You cannot use anymore. You need to throw it in the dustbin. No other purpose, or burn. So that is what it says. These both are interrelated. See, time barred, fixation of time, legal remedy, law of limitation will apply, right? So within the time frame only, you need to file the suit or case or that amount check or promissory note. Time bar debt, clearly it is saying time bar debt. Debt means kharza, time bar debt, which is one of the legal, which is one for which legal time limit to file a suit has expired, and therefore the creditor cannot enforce recovery through a court of law, right? कोर्ट के जरिए जो है नहीं ले सकते बोल के क्लियरली लॉ बोल रहा है यहाँ पर. However, the debt still exists morally, but the legal remedy to recover it is barred by the limitation of law. Morally उसकी जिम्मेदारी क्या रहता है, क्या बोलते हैं, अगर if a person dies, so he legal has to pay the amount, right? But you cannot even enforce his children also. Why? Because that is not a dispute of the property among the family members, or that is they are the shareholders of the company. When the company is not going through the good circumstances, कंपनी अगर डूब जा रही तो क्या होता, शेयर्स देके करके सब कंपनी को जहाँ का वहाँ करना पड़ता, लिक्विडेटर विल बी अपॉइंटेड, राइट? तो जो भी रहा प्रॉपर्टी देना पड़ता है. यहाँ पर भी क्या रहता है, देना रहता है, बट आफ्टर टाइम इज बार्ड यू कैन नॉट एनफोर्स दैट लीगली. अगर देना चाह रहे हैं खुशी से, फिर भी अगर होना है तो दे, तो बहुत अच्छी बात है, एल्स यू कैन नॉट रिकवर लीगली. Then 168, an agreement to restrain the marriage of a minor is void, valid, voidable, illegal. See, three words are common: void, valid, voidable. These both are common words, right? And valid also related to it. Valid, that is opposite to the word void, and voidable, right? Other is illegal. So you note and decide the answer. Thus, an agreement to restrain the marriage of a minor is valid. Why? As such, whereas such restraint for a marriage for a major person is void. क्या बोल रहा है, पर अगर माइनर की कोई शादी हो रही तो उसको एग्रीमेंट करके उसको रोक सकते हैं. जो वैलिड है इनवैलिड रहता, लीगल या इलीगल. माइनर की शादी रोकना सही है, गलत है, लीगल है, राइट? तो इट इज लीगल मीन्स लीगल तो नहीं दिया, तो लीगल का रिलेटेड वर्ड क्या है, वैलिड है, राइट? सिमिलर वर्ड इज सिनोनिम वैलिड. वॉइड तो नहीं होता, ये वॉइडेबल भी नहीं होता. वॉइडेबल क्या हो रहा, माइनर की शादी करना है, वॉइड एंड वॉइडेबल, राइट? दैट इज फॉर दोज. बट रेस्ट्रेनिंग मीन्स उसको रोकने के लिए, दैट इज वैलिड, राइट? नेक्स्ट इज इलीगल, हाउएवर इट इज नॉट, cannot be taken into consideration. So the agreement restraining the marriage of a minor is valid. ये सही होगा यहाँ तक. Next line what is saying, whereas such restraint of a major person is void. मेजर पर्सन की शादी को रोकना void क्यों है? void illegal. void का मतलब यहाँ क्या हो रहा, illegal. क्यों है मेजर की शादी रोकना?
Because they He have their rights. reason I'm asking. As per Indian government, a person should get married only after 18 years if it is girl, and 21 years after if it is a boy. Yes, he can marry. He means what does the legal technology? He means he includes both masculine and feminine, girl and boy, male and female. So he can marry. He is free to marry if he wants the person whomsoever he can. No one can stop him. Why? Because he is major of sound mind and valid as per the norms of the country and the law of contract, right? So he can marry anyone. वो जो है समझ बूझ के है, बड़े जो भी है, सो इलीगल नहीं है. बड़े होने के बाद वॉट एवर द कॉन्ट्रैक्ट, सी माइनर का इलीगल क्यों है बोलिए अब. वाई इज माइनर मैरिज इलीगल? because they are immature. राइट, नेक्स्ट. वो लोग को उतनी मतलब समझ नहीं रहती. राइट, बोलिए, आप लोग भी बोलिए. So that is the thing. And what earlier what used to happen, some parents used to tell that we have zaban de diye, so they gave given words, and child marriage was done in the early stages of the life, early stages in the during childhood only marriage was done, and then when it becomes major, then again their marriage was done, right? So over a period of time and due to migration and all everything, the person is free as per the Constitution of India and the law, that a person is free to marry any person of his choice, right? No person can force any person, other person to not marry. He cannot stop any major his friend or someone, his family members to not to marry someone, right? That is legal right and fundamental right. That is the reason. Next, a contract based upon the happening or non-happening of a certain event is called stock marketing contract, weather contracts, open market contracts, none of the above. तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है बिना पे जो भी चीज हो रही या हो सकती या नहीं हो सकती, हो रही या नहीं हो रही, कोई सर्टेन इवेंट की, इवेंट समझ सकते हैं आप लोग. इवेंट का मतलब यहाँ पर कोई भी गेम है या कोई भी चीज है, कोई बेट लगाए, क्रिकेट मैच एग्जांपल, तो कौन सी कंट्री जीती है, इंडिया जीती, कोई इंग्लैंड जीती, राइट? वन few persons will be on behalf of India, few persons will be on behalf of England, right? So they will bet this country will win. What will they enter into? Amount will be there, betting will be there, 50,000, 1 lakh, 10,000, 5,000, whatever the amount is there. जीत गए तो इनो पैसे देना, हार गए तो इनो पैसे देना, right? That will be the condition. Which country wins, the other person can recover the amount from him. That will be there. So वो किससे रिलेटेड रहता है? स्टॉक मार्केट से कॉन्ट्रैक्ट है, तो स्टॉक मार्केट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वेदर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ओपन मार्केट कॉन्ट्रैक्ट रहता है. नन ऑफ द अबव क्या रहता है वो? सर ये वेजर कॉन्ट्रैक्ट प्लस ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी आता सर, या वॉइडेबल में आता? Void, you need to understand the difference between void and voidable. Void for the when the government has banned for that specific time, that is void, and voidable are since the beginning it is void, like child marriage, right? That is voidable. Void ab initio, voidable in bracket it will be written void and voidable will be written. So since the beginning only that will be illegal, right? There are few certain things will be there that will be illegal since the beginning if you do, like betting. If it is legal, then it will be void. It cannot be totally तो सर voidable. Why? बेटिंग Because इज लीगल और इलीगल सर इन horse, इंडिया? horse, see example, horse riding will be there, race course is there here in Malakpet, race course is there, so they will go accordingly. If your norms will be there, some parts of the state only in India also there are certain games. Earlier also I have told, I think in the beginning of the classes, that there are few games that are banned in India, banned in state of Telangana, that might be legal in some other states, Andhra and other Kerala or Goa, place of tourist. Why? Because in the games also there will be two things: what the tourists will play for amusement, right? And what the people here in our state they play for betting, right? So for betting that is illegal. Why? Because one person gets lost and the other person gets that amount. So what happens when he gets lost? That will incur not to that person, that will not restrain to himself. It will include, it will take down to how much his family members, their family members will suffer, right? Some persons, government servants, they will bet on their
their salary, their advance salaries will be given. They will bet on everything. They can put anything and everything. They sometimes people will bet their property also. If they lose, they have to give their property, sell their property, and if so, who will have lost? Their legal heirs will get lost, right? There, who has kept their property? Not that person's also, or some that person's, or their forefathers has might have kept their property. They will have no pen for that. They will bet. So that is the law. So that are banned. And game, mind of game. Mind of game means few games will be there. Even online games will be there. So for like Ludo and some other games, that will be for mind games, not for amusement, or amusement also, but not unless amount is betting is done on that, right? So that is the thing. So wager contract that comes under stock markets का तो नहीं होता. However, stock market is totally different. Stock markets क्या होती? People will pay in the companies. They will put their amount, ensure, or they will for time being they will what they पैसे जमा करते कंपनी में, शेयर प्रॉफिट इंक्रीज होता, कभी डिक्रीज भी होता. सो profit and loss will be there. So that is They legally invest bad. in companies and buy the shares of the Companies, yeah, company. they invest in the companies. Recently, some government, some law has been passed by the central government. Raghav Chetta has given persons can even put their even 500 in buildings, offices. They can deposit their amounts, right? So that are the examples. So in that also they will you will have a certain procedure will be there. Lock there will be some lock will be there. If it is going in minus, you will not go into the loss. That will be stopped there only, right? So that is not illegal. Open market contracts that are different. None of the above तो कैसा भी नहीं होता. So what does the note says? A wagering agreement is different, but it is a bet based on an certain uncertain event. Uncertain means उसका कोई गारंटी नहीं है. कोई इलेक्शंस के ऊपर भी होता है कौन सी पार्टी जीतती बोल के. लाइक नॉट ओनली क्रिकेट, इट also comes to the election parties. Some people will say on the one party and some people might stand on the other party side, right? So they will bet. So where certain uncertain events where the parties only intend to win or lose money, and such agreements are void under law. Even that cockfight will be the right cockfight. Andhra, that is very famous. There is some name will be given. Though that is banned, but due to their age-old what we call culture traditions, government cannot ban that. Right here also that goes on. Bullfights. Likewise, many things will be there covered. Next is A and B are watching a cricket match. They enter into a contract. If X makes 100 runs, A should pay 100 rupees, and otherwise B shall pay rupees 200. That is double amount makes 100 runs, right? अगर 100 runs बनाया है कोई कंट्री, इंडिया अगर 100 runs बनाए तो तीनों पैसे देना. अगर 100 runs नहीं बनाए तो the loser should pay 200 rupees, double the amount. There is again रुपये भी ज्यादा चाहिए. So A refuses to pay rupees 100. B files the suit in the court of law. अगर जो है हारने के बाद उन्हें पैसे नहीं देते, पैसे नहीं बोला तो क्या करता? बी जाके उसके ऊपर केस फाइल कर सकता. कोर्ट में कर सकते हैं, नहीं कर सकते. Why? That is the court क्या करता? That will dismiss the suit. Why? Because they are what we have studied here, that are wager contract that are illegal, right? तो उसमें ऑप्शंस क्या था? Succeed as his claim is genuine. He will not because it is a wager contract, or none of the above. So the right answer is the court will dismiss the suit, right? For illegal agreements also, it is best examples are illegal agreement. Comes under illegal agreement only, right? कोई भी illegal agreement करे तो जाके कोर्ट में कर सकते क्या? I have given examples. What examples? This relating to currency notes. I have given example. Some people have dealt with. Recently, there was a case of that came in the news. Somewhere it has happened. Duplicate currency note. In Gujarat also that happens. Some states that they will police will catch. They will put raids. They will क्या करते? Currency यूपी notes. में हुआ था सर, यूपी UP, में right? हुआ था. They will print the currency notes of some country, especially the country we are living or some other country, to make the profit of that duplicate notes, right? They will circulate in the market and they will get the profit out of that notes. So if one person is having contract, giving a contract to some other person to print duplicate notes and giving some money, so if that person does not comply that amount, he does not print and give him the amount, so can he go and tell to the court or police station that I given his amount that to print the duplicate currency note, he did not do that, complied that. So Buga case, will the police and the court listen to him and accept the case?
straight away they will dismiss and they will arrest him. They will put the case against this fellow only, right? So that is the case. That is what it is saying. The court will dismiss the suit. Here A and B are betting on uncertain events, performing acts with mutual chances of gain or loss, which is the essential feature of a wagering contract. In the Section 30 of the Indian Contract Act, such agreements are void. This is pertaining to Section 30. You underline the Section 30 and wagering contract. Got my point? The above section we have studied just before this one. The Indian contract, such agreements are void and therefore B cannot recover rupees 100 in a court of law and the suit will be dismissed, right? An insurance contract is a wager contract, not a wager contract. It is a wager contract permitted by the government or D, none of the above. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आप अभी थोड़ी देर पहले बोला इंश्योरेंस के जैसा नहीं रहता कुछ रहा तो उसमें जो है गारंटी रहती इलीगल एग्रीमेंट दैट विल नॉट कम अंडर इंश्योरेंस राइट तो इलीगल इंश्योरेंस क्या रहता वेजर कॉन्ट्रैक्ट है नहीं होता वेजर कॉन्ट्रैक्ट इट इज व्हाट इट इज सेइंग इंश्योरेंस क्या है वेजर कॉन्ट्रैक्ट है बोल रहा ऑप्शन ए ऑप्शन बी क्या बोल रहा वेजर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बोल रहा सी क्या बोल रहा इट इज अ वेजर कॉन्ट्रैक्ट परमिटेड बाय गवर्नमेंट so it is permitted or not it is a wager contract first one and third one are similar none of the above तो कैसा भी नहीं होता so the correct what is the correct answer insurance contract is not a wager contract right इसमें profit loss का कुछ भी नहीं है it is relating to the health industry and they are collecting the amount few amount monthly for if a uncertainty in the future happening for you they will suppose example what happens there is a some going to by god forbid you met with an accident or your family someone person has met some disease whatsoever an operation has to undergo an operation so you does not you need at that time if you are paying the insurance amount monthly or yearly annual subscription you need not pay that amount through your pocket right entire amount will be claimed by the once you tell the hospital that we have so and so company insurance they will recover from the insurance company you did not pay any amount so वो illegal होता क्या वैसा नहीं होता so that is not illegal that is what says insurance there is insurable interest and risk protection that is the important word see right risk protection is there and interest insurance whereas in a wager there is only chance of gain or loss right yeah gain loss का कुछ भी नहीं without any real interest hence both are legally different both are different words that's what it says next क्या है breach of contract means breach of contract breach का मतलब क्या होता है breach in other words means break तोड़ देना उसको वादा खिलाफी करना contract बोलते हो contract and agreements we have studied contract taking some project undertaken to complete it and hand over to the person who has given you on contract right and refuse next what it is telling breach of contract means violation of contract non-performance of the contract refusal to perform the contract d only offer and acceptance which are present so what will be the correct answer breach of contract का मतलब क्या होता Non-performance of the contract. if contract is performed then But it can also become a violation, right? Because they are not following the contract. So if it is not following, that will become violation, no? that is the mediation that is the medium point then it is asking the conclusion what it happens that is the procedure in between violation after the violation non-performance comes to and existence right तब पूरा Correct. breach of contract का मतलब क्या हो रहा है उन्हें violation कर रहा था you need not give the explanation is asking what will happen what is the terminology called he's not asking Okay. like CRPC he's asking what is that section relevant like IPC which section will attract what is the legal word for that so that is called non-performance of the contract that is Okay. also correct after violation of contract is also correct but exact definition is this non-performance of the contract what does the note says breach of contract generally means non-performance of the as you said violation this is related term non-performance of the contract right or failure of a party to fulfill its obligation as agreed wait for 5 minutes
So next, it may include complete non-performance, partially performance, or improper performance of the contractual terms. Is non-complete, incomplete, includes complete, non-performance. Complete भी बोल रहा, non-performance बोल रहा. Complete का मतलब क्या होता है? Complete होगी. Non-performance का मतलब perform नहीं करे. Complete non-performance means very much less बोलते हैं, देखो बहुत कम बोलते हैं, बहुत भी बोल रहे हैं, कम भी बोल रहे हैं. So there are words in English, so you need not get confused. Complete भी बोल रहा, non-complete, so it's not here. So non-performance, what are you doing? You have not done the contract, perform the contract in the way that you were agreed for completing in the manner as it was said. So that is non-performance or partial performance. Examples we have given as construction of the building, they have completed. If you have ordered for 2 floors, they are constructing 1 floor. Or you also included whitewash, they did not include whitewash, right? Non-performance also, or likewise other examples also there. So improper performance of the contractual agreements, right? So breach of contract means non-performance of the contract. You are not performing the contract in the manner, either completely not doing it or partially not doing it, right? Both it includes. A contract not entered on the violation of the parties is called quasi contract. क्या हो रहा? Contract not entered on the violation. Contract enter नहीं हुए on the violation of parties के behalf में. तो उसको contract क्या बोलते? Quasi contract, breach of contract, void contract, violate contract. What does the you did not understood? समझ में आया? Question क्या पूछ रहा? नहीं समझ में आया. It so says that quasi contract क्या है? Is not the performed. It is not performed by the agreement or consent of the parties. ये जो है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है पार्टीज के कंसेंट से नहीं हो रहा, ये पार्टीज अग्री नहीं हो रहे उसके लिए, उसके बाद भी जो काम हो जा रहा है या करते रहे तो फोर्सफुली, दैट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इलीगल, दे आर लीगली, राइट, बट इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. कौन कर रहे हैं इसको? ये इलीगल भी नहीं हो रहा, तो इलीगल पर्सन भी नहीं कर रहे. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहे हैं? इट इज बाय लॉ. Who is the law? Who is the ultimate authority? The state means the country or the state government by them to prevent the unjust enrichment. किस चीज के लिए? unjust injustice होने के लिए. Example I say, and thus it is not a real contract. वो जो है real contract नहीं होता, but an obligation is imposed by law. लेकिन उसका जो है आपके ऊपर obligation वो करना है तो आप करना है. That is obligation by law. It is there on you to carry out that or do that thing. Commission and omission पड़े अपन, so it comes under omission or commission. That, but obligation imposed by the law. It is done by the government or the law, and you have to abide by that, even without the intention or consent of the parties. Even you are not ready, or there is no consent. Even then you are not ready. You are not willingness. Then also, example, there is road widening going on here. Crossroad is there, main road. This is the highway road going to the airport, right? Passing through the old city. That is the main only way to go. There might be some other ways created later, but as of now, due to the increase of the traffic, what happens? Road has to be widened, right? And for that, suppose your house is there on the road, or your shop is there, whatever, a school, some building is there, that has to be demolished. For which purpose? For the sake of the free flow of the traffic. Why? For whom? It is for the public, general public. It is for the benefit of public at large. So you have to do that. You cannot say that I will not give my property for the demolition. That is my ancestor's house. I have everything attached to this. Since I am born till death, I want this house. After that, you break. You cannot take. And government will also not give any injection, only on the condition that fair compensation is not paid to you. Example, what will happen when the government makes a plan that there is huge flow of traffic and there needs a master plan and road widening has to be done. So what they do, or the bridge has to be made. So they will plan and there will be market rate and government rate for the property, every property. So sometimes what will happen, government will be less and the market value might be more. And sometimes the situation will be quite opposite.
market rate will be very much less, and the government rate will be more as fixed by the government. So the government says that no, we are the government authority and we will pay you the amount only as fixed by the government. What is the rate? So what will happen in that case? We will have loss, right? We will incur loss. Suppose there is a commercial establishment having there is apartments we have given, or commercial shops are there. You need not get similar property or some other property somewhere it is there nearby, and you can, there is open land, you want to buy that land, and so when you take this amount, suppose there is amount of 5 lakhs example, and government rate is 5 lakhs and the market rate is 10 lakhs. Government is paying you 5 lakhs, and you want to buy the other property alternatively for 5 lakhs. So will that person give you? Other person, he will say market rate is 10 lakh, I will sell this plot to you on rupees 10 lakhs only, right? So here you are getting loss. Where will you arrange the amount? So you will, what you will do, you will approach the court of law. Then the court says, no, you have to give 10 lakhs to the government, should pay 10 lakhs, right? That is fair compensation scheme. So if it is that scenario is there, only under that circumstance amount will be paid, and only then you will have to give the property to the government for the benefit of the public at large and for the country. So even if you are not willing to, even after the government is ready to pay fair compensation, you are not ready, you cannot stop your property from by the government to be taken away, right? So that is what quasi contract is. You are entering into the contract despite your non-willingness, right? Hope you got the point. Next, what it says, thus it is not a real contract but obligation imposed by the law. And other example is what? Suppose there is a bridge connecting within the districts or states or one area to the other area, right? Major bridge is there. So if that bridge suddenly that collapses, bridge is collapsed, and adjacent to your house or your property, there is some space that can go through the connecting to the other area, right? So the government, for time being, government wants to lay down the road and take your way, that property for the way. You cannot stop the government from taking away that right. That you cannot say that I will not give my property to use by the public, right? Anyhow that has to be done. अगर ऐसा हो सकता है कि आप नहीं देते बोलते तो क्या होता है, पूरी ट्रैफिक रुक जाती है, everything will be put on hold. So on that condition also you have to give it to the property to the government for timing or permanent also needed, right? Next, the right to maintenance is available under IPC, CRPC, IPC and CRPC both, and constitutional law. So constitutional law देखिए, maintenance कहाँ पर आता? All laws are IPC, CRPC and CPC. Everything BNS are made in accordance with the Constitution of India, right? तो मेंटेनेंस किसमें आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आईपीसी में है, सीआरपीसी में, किसमें है? दोनों में, आईपीसी सीआरपीसी में, आईपीसी में, sorry, CRPC, it is mentioned in wrong, it is mentioned in IPC because CRPC 125 section is there. Right of and who all include maintenance, कौन किसे क्लेम कर सकते हैं? It says in the next section, maintenance petition can be filed by whom? Children, wife or age-old parents. All age-old parents can claim maintenance from their children. Why? Because they have nurtured their children and now they are age-old, they cannot do anything. They can take the benefit of their children, right? It is the duty of the children to maintain their parents. Likewise, it is the duty of the husband to maintain his wife. Wife can also file the claim, right? Generally, what is happened, wife or housewife, they will not go for the work that are being done, carried out by men mostly, right? Comparatively to the women. So wife can claim maintenance from the husband, and children also. Parents have to pay the fees of their school and they have to take care of their parents, right? Children, right? They can also file. So maintenance, see, I just told you. Thus, under section 125 CRPC, wife, children, and parents are entitled to file the maintenance petition, right? A maintenance petition can be filed by wife, including the divorced wife, unable to maintain herself. Even this is relating to Shabanu case. Earlier, that was not for the Muslims. That was for the law was meant for the law, all religions except Muslims. Why? Because Muslims have personal laws of inheritance, marriage, and everything, right? Extending to, in this case, Shaban, there is famous Shabanu case. 1990s, Shabanu case was there. Through that case, only after that case has applied to the woman, divorced woman, that
a man has to give maintenance alimony amount to wife, either one time or monthly or whatsoever, right? Earlier that was not there. As in Muslim personal law, there is no concept of maintenance after the divorce, right? Remember that. And children, be it minor or major, unable to maintain themselves. Now, recently law has been passed that even major daughter has can claim the maintenance from father. If suppose wife is divorced and they got the children, so it is the duty of the parents father to maintain till the girl child is major or she is married. So even she is major, even after attaining the majority age of majority, she can claim from the father. That is the recent law. Parents, father or mother unable to maintain themselves. CM, sitting CM of the Telangana state, he has passed a resolution and made a law that if the persons employed in the state government, they are not maintaining the parents, their salary will be deducted and paid to their parents, right? You are aware of it, hope I think. So here coming back, right to maintenance available under CRPC, right? Make it correction if you have any in books or whatsoever under. And CR coming to the CRPC, that is criminal procedure IPC. IPC, what it includes, punishments will be included and the offense will be included, right? So, however, it does not come under the purview of the IPC. And what the next it is saying, IPC or CPC, कोई भी चीज का दो चीजों में रहता है क्या, अनलेस दैट कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और जो है सीआरपी आईपीसी में भी रहता है या सीआरपीसी में, व्हाई, बिकॉज they are related, like right to life is there, article 21 is there. Then if a person commits murder under section 300 old murder is there, so likewise like that laws may be there. And related, what are the other laws, like I'll be giving example of Criminal Justice Act, like article 14. Other constitutional rights are right to education, right to children's prohibition from working, so that are separate act is also there. So if it is there that IPC constitution and IPC means you can understand that, but what is saying IPC में भी है CRPC में भी है, तो ऐसा हो सकता है कि IPC में क्रिमिनल और प्रोसीजर में दोनों में नहीं आ सकता, या अगर वैसा बोला कि CRPC में भी है CPC में भी है बोल, तो that is not possible, right? So the correct answer is CRPC, and in CRPC it is section 125, right? Next, coming, the finder of lost article has right to claim compensation. अगर किसी का कोई चीज गुम गया, कोई लेके जाके दे रहा, तो he can claim nominal compensation whatsoever if it agreed. The next option, what it says, no claim for compensation. Any doubt? Next, what it is saying, अगर lost article हुआ, अगर कोई ढूंढा, तो उसको it depends on the owner of the article. उन्हें देना चाहे तो दियो या नहीं देना चाहे तो नको दियो. And next, last option it says depends on the finder. Finder की मर्जी है, देना चाहे तो लियो, नहीं लेना चाहे तो नको लियो. So this is also possible, but the correct answer is he can claim compensation. Why? Because for delivering that property or handing over, he might have incurred the expenses of traveling expenses, right? At least that expenses has to be given. And property might be some gold is there, gold ornaments. It will be not less than thousands of rupees or lakhs of rupees, right? So अगर लॉस हुआ, उसका अगर गुम गया, नहीं मिले, सपोज समवन फाइंड्स अ कैश फुल ऑफ बैग, उसमें से दे रहा, तो पूरा चल जा रहा, उसमें थोड़ा बहुत दिया तो उसको नुकसान हो रहा, उसमें से नहीं हो रहा, समझो फॉर्मेट. अगर पूरे चले गए तो क्या करते हैं, गोल्ड गुम गया तो उतना सारा नुकसान हो, उसमें थोड़ा बहुत तो दे सकता अपन फाइंडिंग. So that is there. A finder of lost goods has no right to sue for general compensation, but he has a right to retain goods until his lawful expenses are paid. So he might be calling the person, some address might be there, or some card is there, or some identity is there that it belongs to some person. We identified that it belongs to some company, some school or some organization like that. So hospital guy, so क्या करता है, phone कर, he might make a telephonic call or message or whatsoever through electronic form or some other means of modes, right? And he says, what it says that you pay me, I got your lost whatever your amount, lost item is there, it is with me. You pay the amount and you take the amount. He can say that, right? And you come and collect also, he can say upon payment or upon giving something, I will give you this, your property whatsoever it is there, right? बोल सकता ना, ये वाजबी है ना, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई illegal नहीं है, कोई void नहीं है, right? So he can do that. So right of finder can claim the compensation. Next, damages are awarded in court
by court in breach of contracts, civil contracts, criminal contracts, violation of constitution. तो अवार्ड किसमें पास होता है? अवार्ड का मतलब पहले समझे, अवार्ड किसमें होता है? स्पेशली अवार्ड, दिस टर्मिनोलॉजी विल बी मोस्ट probably used in the लोक अदालत. I think you have heard about लोक अदालत. Now just now I have given examples that कोई गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी लेना चाह रही रोड वाइडनिंग में उसमें, तो व्हाट दे विल डू, फर्स्ट ऑफ गवर्नमेंट विल आल्सो नो दैट इफ वी डिले, इफ यू वांट टू गिव, अगर पैसे कम दिए, कम में करेंगे वो तो पूरे कोर्ट को जाते, फिर टाइम खराब होता, फिर कंपनसेशन देना पड़ता, उनको भी एडवोकेट हायर करना पड़ता. सो उससे पहले क्या करते हैं, दे themselves will set up a लोक अदालत before a particular court of area jurisdiction whatsoever it is there, and they will write that points that we are the government appointed authority. That is, generally in Hyderabad you have HMDA, Hyderabad Municipal Development Corporation, right? If it is railway, HMRL, Hyderabad Metro Limited, it is there, corridor, like IT corridor, they are taking the property. अब हो रहा ना जैसा, it is extending till Chandrangutta, right? Master plan उसका जा रहा, तो they will pay compensation. So they themselves will make agreement between HMD or HMRL and the person so and so concerned whose property is there, and so much so is the property of how many square yards, 101 or 1000 square yards, and the what is the rate, particular rate of the government rate is this and private rate is this, and so much per square yard, this is the amount, and what is the total square yards your property is, we are paying so much so amount. And they will call the particular area of Chandrangutta, they will make agreements, all agreements, and once they call them and they will give them the checks, or they will call them to the registration office and they will register on their names and they will hand over you the amount in the banks, or they will give you checks whatsoever manner, right? तो उसमें क्या होता, उसको अवार्ड बोलते हैं, जो अग्रीमेंट जो देते हैं आपको उसको क्या बोलते हैं, लोक अदालत का अवार्ड. लोक अदालत अवार्ड इज इवन बिटवीन द टू पीपल फाइटिंग इन द, इफ इट इज मैटर ऑफ सिविल मैटर, some dispute is going on between the neighbors or other parties residing somewhere else or commercial stand, whatever. So lok adalat will be set up in every 3 months in civil court, high court, and check bounce cases and criminal cases. So if the court says that if you settle the matter amicably, will pass the order, इतने साल लड़ने की जरूरत नहीं रहती आपको, जो अगर जो भी लॉस हुआ उन्हें देने के लिए तैयार है, आप लेने के लिए तैयार है, तो वहाँ क्या होता, कोर्ट जो है केस क्लोज कर देता, राइट? किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती बाद में. सो दैट इज आल्सो कॉल्ड अवार्ड by the passed by the लोक अदालत. What it says in the note, in case of breach of contract, court awards damages, monetary compensation. breach of contract का जब breach होता है, जब जैसा आप बोले अपन कोई कॉन्ट्रैक्टर कुछ बिल्डिंग या लीज पे जो भी whatever, so when you approach the court of law, the court will pass the order, and that order is also called what, award. That is monetary compensation. आपको जो है इतना पे करना बोल के, especially where it happens, consumer forums are there, consumer courts are there, when you got the loss by the company, that product, some products are there and you got any way, any form, there is loss, you can file the court before the consumer forum, and the consumer forum you have taken an electronic item. Suppose there is, this is the summer season and you purchased an AC that is not working or not functioning, you want to go to exchange or you want to replace, or you are calling the company to repair that one, so they are not listening, not repairing and not exchanging. What you will do, you will go to the consumer forum, you will file a suit, and the court will call upon them, notice will be sent, case will be registered that through the court, they will call upon, they will also come and file their counter, what is their right or not, or before only they will settle the matter that we will, okay, we are ready. Why? Because they will be knowing that if the court passes the order, that will be in huge multiple times, not one time, they may pass the order. जितना लॉस हो रहा, सपोज एक एसी है 10,000, जो आपको अगर लॉस हो रहा तो उनको पेनल्टी कितनी पड़ती, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, कोर्ट कितनी भी अवार्ड कर सकता. वाई? बिकॉज यू हैव लॉस इनकर्ड फॉर सो एंड सो, कितने दिन आप गर्मी में रहे, जो लॉस हुआ आपको कोर्ट में फिरे करे, तो ऑल दैट एक्सपेंसेस, इवन दी लीगल फॉर हायरिंग द एडवोकेट, एवरी नोटिस, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड. सो बिफोर ओनली दे आइदर कम फॉर द सेटलमेंट, और at last the court will pass the order. So that award is also called, that order is also called award. So it says that in case of breach of contract, the court awards damages, that is monetary compensation, to the aggrieved party for the loss or injury caused. Loss और injury का मतलब क्या हो रहा? इंजुरी कितने किस्म की रहती? फिजिकल इंजुरी है, मॉनिटरी एंड मेंटल इंजुरी. मॉनिटरी भी होती ना, पैसों का लॉस हो रहा आपका, so that will be there. The object of awarding damages to place the injured party in the same position as if the contract
had been performed. इसका लॉस होने का मतलब मैं इससे पहले भी बोला था, अग्रीमेंट करे आप, contractor has not given you your property on correct time and time has elapsed 1 or 2 months or few months or years. So meantime you are residing some other property on rent, and whatever the rent you have paid all these days, all these months, that have to be paid by the contractor, right? That is what it is saying. So that is breach of contracts, and damages are awarded by the court in breach of contract, right? Next, समझ गए ये? Doubts नहीं है ना कुछ भी? Next, quantum merit means, quantum merit का मतलब क्या है? That are all the legal terminologies by in Latin language especially. Quantum merit means as much as he earned or as much as he deserved. That is payment for the work. तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्वांटम मेरिट का मतलब क्या हो रहा? जो भी काम करे उसको जो है उसका मुआवजा जो भी है उसके हिसाब से उसको पैसे देना जो काम करा. A person is working in any particular stream or industry or whatsoever way he is doing. Suppose there is a labor working from morning to evening. What are the charges fixed? For example, 1,000 rupees, right? 1,000 rupees has to be given, not much less. If you want to give or giving much more, or is working, he is telling that I will work जितना काम करना है, I will do this work, so you have to pay extra amount also, but not less than that. If suppose the contract is being given, जो कॉन्ट्रैक्ट जितने पैसों में बात की गई, जैसे अपन बोले, तो उतने पैसों में उन्हें करना है, उससे कम पैसे नहीं दे सकते आप. बढ़ के बोलते अगर लॉस हुआ तो बढ़ के भी देना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम अमाउंट तो देना पड़ेगा. यू आर गोइंग टू अ पेट्रोल पंप, यू विल व्हाट यू विल डू, यू लास्ट फॉर गिविंग 1 liter of petrol and you will pay 100 rupees if there is 100 rupees per liter, right? कम पैसे दे तो उन्हें लेता नहीं लेता. So that is the thing. So likewise, quantum merit means as much as he earned or as much as he deserves. तो जितने पैसे अर्न करने की उसकी कैपेसिटी है, जितने उन्हें डिजर्व करता उतने पैसे देना. That is payment for the work done. It refers to a right to claim reasonable compensation for services rendered or work performed, especially when a contract is incomplete or unenforceable. यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं हुआ, इट रिफर टू राइट क्लेम. क्लेम क्या कर सकते हैं? राइट क्या कर सकते हैं? आप क्लेम कर सकते हैं, राइट? कोई भी राइट है आपका तो आप क्लेम कर सकते हैं रीजनेबली कंपेंसेशन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड व्हाटसोएवर इन द मैनर रेंडर्ड एंड वर्क परफॉर्म, जो भी वर्क हुआ, स्पेशली व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट, वर्क इज कंप्लीट एंड अनएनफोर्सेबल. अदर ऑप्शंस क्या है? कंपेंसेशन पेएबल इन क्वांटिटी, डैमेजेस पेएबल ऑन मेरिट और नन ऑफ द अबव. डैमेजेस में अगर हो रहा तो इसमें क्या होता है? ये ऊपर के एग्जांपल में आता ही है, राइट? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इसमें आता. You can go to court of law and ask for compensation. Next क्या है? A promise made by a person to another person to save him from loss is contract of indemnity. Indemnity का मतलब क्या हो रहा? Suppose there are 3 persons. 180. Yeah. Yeah, last is 180 only. तो इसमें क्या होता है? जनरली there will be 3. One person is in need of money. एक आदमी को, एक शख्स जो है person A, he is in need of money and he is going to person B, that is his friend, and asking him the amount, and he is not having the amount. What does he do? उसके बाद क्या करता? दूसरा दोस्त जो है, तीसरे दोस्त के पास, सी के पास जाता. सी के पास जाके क्या बोलता? अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसको जो है सब पैसों की जरूरत है, तो जो है लिहाजा आप पैसे दीजिए. अगर इन अगर नहीं पे करे उसके उस सूरत में जो है I will pay the amount, I will be responsible, he will be taking the responsibility and saying that I'll get next month, I'll be getting my salary, I'll get the rent whatsoever and I will pay you on that day, right? अगर मेरे पास होते तो मैं पे करता था. So what will he will agree that he has to, that we will agree upon that condition. We agree होकर क्या बोलते हैं? Okay, I'll give the amount. So she is standing as guarantor, right? And A is in need of money and B is paying. So 3 persons are there. And so what happened? A promised that he will be paying on time. He is in need of money. But what if he cannot pay the amount on time? अगर वो टाइम पे पे नहीं कर सका, नेक्स्ट मंथ आ गया, नेक्स्ट मंथ की आज फर्स्ट को लेके नेक्स्ट मंथ फर्स्ट को दे तो बोला, उन्हें नहीं दिया, सपोज उसको सैलरी नहीं आई, तो हु हैज टू पे? कौन पे करना पड़ता उसकी जगह? guarantor. C has to, third person has to pay. Why? Because he stood as surety as guarantor, that if he fails to pay the amount that he will pay, right? So that is what indemnity says. Indemnity bond will be there, like promissory note is there. Similarly, there is indemnity bond will also be there. So indemnity bond पे वही लिखा हुआ था कि he is standing as guarantee or surety, that is third person on behalf of the first person to the second person. A contract of indemnity is, इसमें देखिए गारंटी बोल रहा, सेल बोल रहा, सेल तो नहीं होता, गारंटी भी नहीं, गारंटर रहता, लेकिन
that is third person. So the word proper term is indemnity. A contract of indemnity is a contract where one person promises to save the other from loss. ये क्या कर रहा बी को, ये क्या कर रहा जब जो है ए को जरूरत है तो बी को लॉस नहीं होना बोल के he is protecting whom he is saving the another person. Who is this another person? C. To save C from getting loss, a B is standing as surety as defined under section 124 of the Indian Contract Act. So underline this section 124 of the Indian Contract Act, right, as indemnity, right? और indemnity अगर लिखा हो तो उसके बाद 124 लिख लीजिए. Next, thus a promise to compensate or protect another person from loss clearly amounts to a contract of indemnity, right? एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को indemnity नुकसान होने से बचा रहा, so he is standing as surety and he is called, that agreement is called indemnity or indemnity bond, right? Next, in a contract of guarantee on the change of terms of contract, the security is discharged from the obligation. क्या हो रहा है contract of guarantee पे on the change of terms of contract. Contract of guarantee में क्या हो रहा है, अगर contract के terms अगर change हो रही, the security is called discharge from the obligation, not discharge from the obligation, discharge but only when the variation without his consent. Or D, no discharge of security till the guarantee period runs. So note what it is saying. कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, गारंटी में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं सिक्योरिटी की तो उसको क्या हो रहे हैं, क्या बोलते हो डिस्चार्ज बट ओनली व्हेन द वेरिएशन इज विदाउट द कंसेंट. डिस्चार्ज हो रहा लेकिन कब हो रहा, वेरिएशन से हो रहा, डिफरेंस हो रहा ना, वेरिएशन. चेंज से क्या मतलब हो रहा है, वेरिएशन देना, चेंज से वेरिएशन हो रहा विदाउट द कंसेंट. कंसेंट का अभी जैसा अपन पढ़े क्या बोले थे वो लॉ को क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोले थे, राइट, विदाउट द कंसेंट. इट इज आल्सो सेइंग लाइकवाइज. Note under section 133 of the Indian Contract Act 1872, if there is a change को क्या बोलते हैं, variance in the terms of contract without the consent of the surety. Surety जो ठहरा उसको नहीं मालूम है, agreement में बाद में क्या करे उसने changes कर दिए. Surety को without the consent of the third person, that is उसको as guarantee और surety. जो A को जरूरत थी पैसे की, B जाके C को रिक्वेस्ट करे तो C पैसे दी, गारंटर ठहरे B. तो जो है गारंटर B को नहीं मालूम, A और C मिलके क्या करे, टर्म्स चेंज कर लिए कंडीशन के विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी. द श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस. तो उसमें क्या होता, इसको बगैर बोले, इसकी परमिशन लिए बगैर या इसकी नॉलेज के बगैर बोला, कंडीशन चेंज कर लिए. अब जब जाके जो है एग्रीमेंट, जब पैसे देने का टाइम आया, फिर जाके जो है ए जाके जो है इसको नहीं बोल सकता, बी जाके फिर क्या करता, सी को नहीं पूछ सकता पैसे दियो बोल के. व्हाई? बिकॉज दे चेंज द टर्म्स एंड कंडीशंस विदाउट हिज नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड कंसेंट, राइट. वो कुछ भी कर लिया. अगर जब तक इसकी गारंटी कब थी, जब तक कंडीशंस टर्म्स क्या थे, जब तक ये रिस्पॉन्सिबल था. जब टर्म्स कंडीशन जब चेंज कर लिया लोग आपस में, तो इसकी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन अराइज दैट ही हैज द गारंटी एनीमोर, राइट. So it says that however if the variation is made with the consent of the surety, then the surety continues to remain liable. Surety कब होता, जब जो कंडीशंस, जब तक भी जो कंडीशंस पे कायम थे, अगर वही कंडीशंस रहे तो लास्ट तक, एंड तक जो है थर्ड पर्सन रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता, और ही इज रेस्पॉन्सिबल एंड ही हैज टू पे, जब जो है अगर ए पे नहीं करा तो, राइट. ऊपर पढ़े थे ना अपन सेक्शन, वही है. एनी डाउट्स, समझ में आया, क्लियर? नहीं बोलूं फिर से, आ गया सबको, आ गया? ओके, कैन आई स्टॉप हियर, राइट.
बोलिए, कुछ बोलना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके पास है? निकालो आर्टिकल 1 टू 11। पूरा इंग्लिश में हुआ। अच्छा, अगर अपन इंग्लिश में इंडियन ज्योग्राफी होगा जिसमें डिवाइड इसके कितने टोटल 3 साल डिवाइड 5 डिवाइड सेंटर को कौन बना होगा? डिग्री तो कौन लिखा है? डिग्री तो कोई नहीं है, तो एंटर पे। तो सुनो, अगर ये लीगल एप्टीट्यूड है, अगर इसे तुम टोटली ब्रीफ में लेना, पूरा दिमाग सब ज्यादा होगा, ठीक है? अपने उतना ब्रीफ में नहीं जाना है। ऊपर ऊपर से बस तुम खाली कैसे मानो विशाल रख के लेने आज देखिए, जैसा कि अंडर Sir, please can you take the जस्ट अ मिनट, आर्टिकल सेक्शन 123 जैसा है, इसके बारे में बस क्या है इतना लिख लिया ना, बस इतना देर नहीं तो बस एग्जाम लिखने के लिए एंट्रेंस का एंट्रेंस एग्जाम होने बाद तुम लोग का एंट्रेंस एग्जाम का हो जाता ना, उसके बाद तुम लोग ये सब्जेक्ट आप देखिए लीगल एप्टीट्यूड बोल के सब्जेक्ट ही आता, जब ओपन कर लेंगे मैं एक ग्रुप में थोड़ा पीडीएफ बनाने का टाइम है था मेरे पास, मैं निकाला ये 2 चीजें अंदर ग्रुप में ले लीजिए पूरे, मैं फिर भी सब बहुत थोड़ा ब्रीफ करूंगा, ठीक है? जब सर ये सारी Hello, we are unable to hear anyone. अभी 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 जस्ट 1 मिनट में क्लास स्टार्ट होती है, 2 मिनट वेट करिए आप लोग खाली। Yeah, just a request. Like, जी बोलिए। can you hear me? Yeah. See, I am new to एक law. सेकंड एक सेकंड भाई, जरा आवाज थोड़ा। जी साहब बोलिए। I'm new to law and all. I don't know the basic thing, but when I joined from 6th of April, they are taking us through this question and answers and everything. But we don't know the basic thing. Is there anything like they are going to teach us about their parliamentary fundamental and kind of things? मैं आपको साहब एक बार अपन कॉल पे बात करेंगे। आवाज यहाँ पर पूरा क्लास 10 फुल हो गया, थोड़ा आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा। इंशाल्लाह आप मुझे एक बार क्लास के बाद कॉल करिए, मैं इंशाल्लाह कैसे आपको ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा उसका। Okay, शुक्रिया भाई। जी शुक्रिया। सबजन एक बार ग्रुप में मैं आप लोगों को आर्टिकल्स डाला। सबजन एक बार ग्रुप में आर्टिकल्स देख लीजिए। आर्टिकल आज कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास होंगी, आर्टिकल 1 to 11 होगा। जैसा कि है ना, आपको दो सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें।
पार्ट 1 पार्ट 2 रहेगा। आज अपन पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पार्ट 3 पार्ट 4 करना रहता। जैसा कि मैं जब आप लोगों को बोला हूँ, पूरे आपके आर्टिकल 1 to 51 क्लॉज ए, ठीक है, 51 एक होगा, 51 क्लॉज ए, ये एक दो रहेंगे, वहां तक अपने को पूरा कंटिन्यू करना है, कंप्लीट करना है। रिगार्डिंग इसी के रिगार्डिंग पूरा क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार ग्रुप में सब जने एक बार देख लीजिए, मैं मैसेज डाला, देखिए एक, जी मैसेज वगैरह देख लीजिए, अपन एक बार समझा ले तो आपको। डन, बराबर। आर्टिकल 11 है, आज आर्टिकल 11 तक ही रहता पार्ट 1। आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 रहेगा, 5 to 11 आर्टिकल पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। एक बार फिर एक बार जहन में रख लीजिए, पूछता ये आर्टिकल कौन से पार्ट में आता बोल के पूछता, ठीक है। आर्टिकल 1 to 4 नोट, चलिए नोट्स लिखना स्टार्ट करिए। आप लोग भी लिखिए भाई, ऑनलाइन वाले आप लोग भी पूरे नोट्स लिखिए। क्विक, पार्ट 1 ठीक है, नोट करिए। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 आएगा, 1 to पार्ट 1 में आर्टिकल समझा तो आप लोगों को, ठीक है। चलिए पार्ट 1, उसमें पार्ट 1 के अंदर 1 to 4 आएंगे आर्टिकल्स, ठीक है। पार्ट 2 नोट करिए, पार्ट 1 में 1 to 4 आर्टिकल्स किस में आएंगे, पार्ट 1 में आएगा। 5 to 11 आर्टिकल किस में आएंगे, पार्ट 2 में आएंगे, ठीक है। लिखिए पार्ट 2, क्विक लिखिए पार्ट 2, 5 to 11 आर्टिकल्स, 5 to 11 इन अ पार्ट 2। Sorry, you are not audible. वन, ठीक है। फिर एक बार आप लोगों को कंटिन्यू कर रहा हूँ, पार्ट 1 में 1 to 4 होगा, पार्ट 2 में 5 to 11 होगा। बोल रहा हूँ ना मैं, पार्ट 2, पार्ट 3 में 12 to 35, ठीक है। ठीक है, पार्ट 1 के बाजू एक लाइन लीजिए आप, या सब कॉलम बनाइए पार्ट 1 के बाजू, पार्ट 1 के बाजू सब कॉलम बनाइए। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी लिखिए, क्या लिखते हैं, ये पार्ट का नाम क्या है, फर्स्ट पार्ट का नाम ये है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द यूनियन UNION यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, TERRITORY टेरिटरी। क्विक, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी लिखिए आप लोग, ठीक है। पार्ट 2 में सब कॉलम बनाइए, पार्ट 2 में सब कॉलम बनाइए। सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप, क्विक, सिटीजनशिप लिख लिया आप लोग। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, FUNDAMENTAL फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में क्या फंडामेंटल राइट्स आते या नहीं आते, ऐसा पूछता हो क्वेश्चन, ऐसे ही आता। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आता, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बोल के ऐसा पूछता। तो आप लोगों को क्या लिखना है, पार्ट 3, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। Sir, can you please repeat part 3 article? पार्ट 3 में मैम, अभी पार्ट 3 में आपको लिखना है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में सब कॉलम बनाइए, सब कॉलम बना के लिखिए फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किसको बोलते हैं, अपना जो फंडामेंटल राइट्स एक मायने में जो अपने को बेसिक है, जो अपने को एक जिंदगी गुजारने के लिए यहाँ पर वो फंडामेंटल राइट्स हर किसी को जरूरत रहती, ठीक है। जैसा राइट टू फ्रीडम आता है इसमें, राइट टू एजुकेशन आता है इसमें, तो फंडामेंटल राइट्स इसको बोलते हैं, ठीक है। खासकर बेसिक जो बोलते हैं अपना, ठीक है। राइट टू शेल्टर है, राइट टू प्रॉपर्टी भी एक एक्ट था, लेकिन वो राइट टू प्रॉपर्टी निकाल दिया, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट निकाल दिए कि लोगों ने ना, यस बोलिए सर, फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वालिटी। जी, आएगा आपको उसमें आर्टिकल आएगा, मैं बताऊंगा आपको, पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग ब्रीफ में करके। राइट टू इक्वालिटी में कैसा रहता है, सबसे पहली चीज ध्यान में आप ये रखिए कि आप जैसा कि SC ST OBC वगैरह रहते हैं, तो आपको अभी अभी जैसा लॉ सेट के लिए आप एग्जाम लिख रहे हैं, SC ST OBC सब है इसमें, ठीक है। आपको ऐसा नहीं रहेगा कि आप OBC है और एक जने SC है,
आपको सीट मिल रही, इनको सीट नहीं मिल रही, ऐसा नहीं होता। अगर आप भी पास हो तो आपको भी सीट मिलेंगी, अगर इनो पास हो तो इनको भी सीट मिलेगी। खाली क्या रहेगा, थोड़ा प्रिफरेंशियल जाएंगे। एसटी वाले क्या रहते हैं, छोटी जात के रहते, तो थोड़ा उनको प्रिफरेंशियल ज्यादा, उनको जैसा कि जॉब्स वगैरह है आपको, या आपको एजुकेशन है, राइट टू इक्वालिटी में। अभी मैं यहाँ पर क्या, मेरे को स्कूल में एक एडमिशन लेने का है, जैसा कि रॉयल ग्रामर हाई स्कूल है, वहां पर मेरे को एडमिशन लेना है। अगर मेरे को प्रिंसिपल बोले कि आपको मैं एडमिशन नहीं दूंगा, मैं बोला मैं मेरी पूरी फीस पे करूंगा, जितना भी है फीस मैं पे करूंगा, आपका जो भी स्ट्रक्चर है मैं पे करूंगा, लेकिन सर बोले नहीं मैं तुम्हारा नहीं लेता, इसमें तुम्हारा नाम मोहम्मद है, तुम्हारा नाम फलाना फलाना है, मैं तुम्हारा नहीं लेता। तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर अपन आर्टिकल आता है, वो आर्टिकल के अंदर आप बराबर आप बुला सकते हैं, उनके ऊपर केस कर सकते हैं, आप बराबर स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा रहता राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आपको फंडामेंटल राइट्स में ही आती। तो अभी जैसा कि मैं किसमें था, पार्ट 3 में अपन क्या लिखे, फंडामेंटल राइट्स लिखे, ठीक है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स लिखे, पार्ट 4 30 36 टू 51, 36 टू 51, पार्ट 4। सब कॉलम में नाम लिख लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। खाली आप लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही पूछता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, स्टेट पॉलिसी। और एक ही बार बोलूंगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए बेहतर है आप लोग खासकर ऑफलाइन वाले, आप लोग जहन से सुनिए, ठीक है, गौर से सुनिए। डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। ये कहां तक होगा आपका, 36 से लेके 51A जबर, ठीक है। अब दूसरी चीज, सिर्फ 51 क्लॉज ए, 51, Excuse me, sir. I'm sorry to interrupt. You said Article 36 to 51A is a part of नहीं नहीं, Part 4, right? आर्टिकल 36 टू 51, बस ओनली 51, 51, okay. 51 क्लॉज ए, 51 क्लॉज है आपका, ये होगा फंडामेंटल, जी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ड्यूटीज पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 4 क्लॉज ए, पार्ट 4 क्लॉज ए, इसमें भी होगा पार्ट 4 क्लॉज ए। मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के भी बता दूंगा। जबर बोली, ठीक है, ठीक है भाई। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, सब जने गौर से सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। मैं जैसा कि आप लोगों को बोला, कॉन्स्टिट्यूशन एक सब्जेक्ट है। अभी एक लॉ सेट के लिए आपको 30 मार्क्स 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन में से। आगे चल के आप ये बुक जो ये एक है ना, इसका आगे चल के आपको जब आपका लॉ में एडमिशन हो जाएगा, इसके आपको सब्जेक्ट्स बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन 2 बोल के सब्जेक्ट्स बनेंगे। और उसके बाद जब आप आगे जाएंगे, जब आपका कोर्ट में एनरोलमेंट वगैरह होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पूरा सब्जेक्ट होगा। इसके रिगार्डिंग केसेस वगैरह होते हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस होते हैं इसके रिगार्डिंग। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के जो केसेस रहते हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस रहते हैं और बहुत हाई प्रोफाइल केसेस रहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन में जो केसेस रहते हैं, एक मायने में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चैलेंज कर रहे हो केसेस को। जैसा कि एक सिटीजनशिप का आया, मैं भी एक आप लोगों को एग्जांपल ज्यादा वॉइस को फिर एक बार दे रहा हूं। जैसा कि मैं अभी, मेरे वालिद वालदा इंडिया के हैं, मैं मेरी बर्थ मेरी यूके में हुई और मैं मेरी पूरी 40 साल की जिंदगी यूके में गुजार दिया। अब मैं इंडिया आया वापिस, और इंडिया वापिस आके मैं बोला कि भाई मुझे इंडियन सिटीजनशिप दीजिए, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप दीजिए मुझे। तो वो लोग अगर वो लोग इंडियन सिटीजनशिप अगर नहीं दिए, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिटीजनशिप जैसा अपना सेकेंड अपना पार्ट है सिटीजनशिप का, उसके तहत मैं कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर सकता हूं मैं कि मुझे यहाँ सिटीजनशिप मिलना बोल के। तो एक मायने में कॉन्स्टिट्यूशन ये होता आपका कि पूरा का पूरा देश अपना जो चल रहा, अपना इंडिया जो चल रहा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा। एक चीज ये जहन पे रख लीजिए। और अभी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला पार्ट आता आपका प्रीअम्बल, ठीक है। प्रीअम्बल के बाद, प्रीअम्बल है ना, आप लोगों को मुंह जबानी अपन प्रीअम्बल पे पूरी 1 घंटे की क्लास लेंगे पूरे प्रीअम्बल पे, उतना इंपॉर्टेंट प्रीअम्बल रहता। जो प्रीअम्बल समझ लिया वो कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया। तो अपन पूरी प्रीअम्बल पे पूरी 1 घंटे की क्लास रखेंगे। उससे उसके अलावा आप लोगों को होमवर्क है, समझिए, प्रीअम्बल पूरा मुंह जबानी याद हो जाना। बहुत एक पैरा ही होता, समझिए, थोड़ा सा पैरा होता है, एक पैरा तो अपन याद कर ले सकते। तो प्रीअम्बल मुंह जबानी याद रहना, समझ रहे हैं आप, प्रीअम्बल मुंह जबानी याद रहना। उसके बाद अपने आर्टिकल्स वगैरह आते। तो हम लोग क्या करेंगे आज, आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 1 to 11 आज कंप्लीट करेंगे अपन। उसके बाद बाकी के सेशंस वगैरह सोहेल सर, सलाह सर, वो लोग लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। और इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स वगैरह आएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज को एक जने लेंगे, फंडामेंटल राइट्स को एक जने लेंगे,
वो हिसाब से ऐसा करके लेके चलेंगे अपन, ठीक है। और इसमें से बराबर पूछता ही पूछता आर्टिकल, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को पार्ट जो लिखाया वो याद रखिए। आप कभी भी क्या करना है, देखिए मैं मेरा मेथड बताता हूँ आप लोगों को, मेथड बताता था, बताऊंगा बोल के बोला था। मेरा मेथड ये है, मैं एक बुक लूंगा, बुक लेके वो बुक में मैं, जैसा कि अभी मैं बोला आर्टिकल्स के बारे में बोला, आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 में आ रहा हूँ, तो मैं वहां पर मेरी मेरी लैंग्वेज में मेरे हिसाब को जो समझ नहीं आता, बस मुझे जहन में याद रखने के लिए मैं वैसा लिख लूंगा। जब मैं एग्जाम के करीब जाऊंगा तो एक मैं पूरा एक लॉसेट की अगर हम लोग अगर कोचिंग करें, तो जब अपन एग्जाम के करीब जब जाते ना, एग्जाम के सेंटर के भी करीब बस अपन ऐसा देख लेते पूरी बुक रहती हो, बस पूरी बुक को देख लेते, रिमाइंड हो जाता, पूरा याद हो जाता, गए आप एग्जाम के टाइम पे आपको पूरा जहन में बैठे हुआ रहता। तो एक आप लोग भी नोट बनाइए अपनी खुद की, अपनी रोमन इंग्लिश में लिखिए उसमें, या उर्दू आती उर्दू में लिखिए, जिसको तेलुगु आती तेलुगु में लिखिए, तो अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसा कि आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में, ठीक है। अभी जैसा कि आप लोग है ना, वो जो मैसेज वगैरह था वो मैसेज वगैरह देखेंगे अपन कैसा है। सबसे पहले आर्टिकल 1 to 4 किसके बारे में बात कर रहा है, उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है आर्टिकल। इंडिया क्या है, इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इंडिया को कैसा काउंट करते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करा आर्टिकल 1, ठीक है। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इंडिया के कितने नाम आए, 2 नाम, ठीक है। इंडिया के कितने नाम आए, इंडिया के 2 नाम आए। कैसा है इंडिया के 2 नाम? एक सबसे पहली चीज भारत, अपन यहाँ पर है तो क्या बोलते हैं भारत, एक इंडिया के अंदर एक बोलने के लिए, एक निकनेम के लिए, जैसा कि भारत, इंडिया के 2 नाम आए हैं, ठीक है। एक हो गया आपका भारत, और एक क्या हो गया, हिंदुस्तान कैसा होता भाई, इंडिया होता। अभी जैसा कि अब कोई अगर है ना बाहर, अपन है ना बाहर गए कहीं भी, यूके यूएस कहीं भी गए, वहां पर कुछ अगर है ना कुछ मीटिंग्स वगैरह कुछ भी हुए, तो वहां पर थोड़ी भारत बोलेंगे, वहां पर क्या बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे। तो इंडिया के 2 नाम आए, ठीक है। एक इंडिया एक भारत बोले तो पहले के जमाने में क्या था, लोगों को फीलिंग्स थी नाम के साथ, समझ रहे आप, फीलिंग्स थी नाम के साथ, तो फीलिंग्स के साथ वो लोग क्या करें मेंटेन के लिए, और या फिर इंडिया ही रखने वाले थे, तो फीलिंग्स एक मेंटेन रहते अपना। हम लोग स्टार्टिंग से एक भारत बोले थे आ रही, अभी हम लोग खाली जैसा कि इंडिया अगर ऐसा बोले तो नहीं होता बोल के भारत बोल के इसको, इंडिया के 2 नाम है। तो दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, इंडिया इज आल्सो कॉल्ड भारत, बोथ नेम्स मीन द सेम कंट्री, ठीक है, बोथ नेम सेम कंट्री है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग अभी लिखिए इंडिया दैट इज भारत, इंडिया इंडिया लिखिए। और जाने से पहले नोट्स बताए तो छोड़ूंगा ना, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा यहाँ पर। जिस किसी के पास नोट्स नहीं है माजरत चाहता हूँ भाई, जिस किसी के पास नोट्स नहीं है पेपर लीजिए, पिन पेपर लीजिए, फोन में भी अलाउ नहीं करूंगा मैं, नहीं कर सकते, माजरत चाहता हूँ मैं। जल्दी जल्दी अब लिखिए इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड भारत, बोथ नेम्स मीन द सेम कंट्री, लिखिए खाली ना तो इतना लिख दीजिए, इंडिया दैट इज भारत, वन नेशन विथ 2 नेम्स, वन नेशन विथ 2 नेम्स, इंडिया दैट इज भारत, वन नेशन विथ 2 नेम्स, वन नेशन विथ 2 नेम्स, ठीक है। अभी इंडिया को, अभी इंडिया के अभी कितने, अभी इंडिया के अभी अभी कितने स्टेट्स है अपने, हाँ 28 states. So your voice is not coming. हेलो, So अभी आ रही मैम आवाज है मेरी, Yes, sir. अभी आ रही है, Yes, sir. ओके। इंडिया इंडिया के जितने भी स्टेट्स, एक आप लोग एक मैप देखिए, ठीक है। एक मोटी मोटी एक अपनी जबान में बोलूंगा मैं, कश्मीर कितना है किसी को नहीं मालूम, अपन तो क्लेम कर रहे हैं इतना है। कभी आप लोग पाकिस्तान का मैप देखिए, पाकिस्तान कितना क्लेम करता, जो अपनी ऊपर की मुंडी है, ऐसा होके जो अपनी ऊपर की मुंडी है, वो पूरी मुंडी पाकिस्तान वाले अपने पास काउंट करते, और इंडिया अपने पास काउंट करता। तो ठीक है, इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, जितने भी स्टेट्स के पूरे जो बॉर्डर्स बनते हैं वो पूरे इंडिया के अंदर आते हैं, और जितने भी यूनियन है, यूनियन टेरिटरीज है, जैसा कि दिल्ली हो गया आपका, और आपका और 2-3 है, वो पूरे मिला के इंडिया में। तो ठीक है, दिल्ली अंडमान निकोबार जो है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल रहता,
ठीक है, क्या रहता वहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल रहता है। एक चीज ध्यान में रखिए, दिल्ली में होम मिनिस्टर नहीं बैठता, सेंट्रल गवर्नमेंट का कैसा रहता भाई। अब मैं जैसा एक्सप्लेन करूं, अगर आप लोग वो चीज अच्छी दिखी समझ नहीं आई, आप लोग जब का जब भी अपनी बुक में लिख लीजिए। यूनियन यूनियन टेरिटरीज में किसका किसका वो रहता, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता, वहां पर होम मिनिस्टर नहीं रहता, वहां पर क्या नहीं रहता, वहां पर होम मिनिस्टर नहीं रहता। जैसा कि अभी दिल्ली के होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। कैसे है अमित शाह, क्योंकि अमित शाह होम मिनिस्टर ऑल ओवर इंडिया के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती दिल्ली में। ठीक है, अभी जैसा कि अगर एक प्रेसिडेंट रूल लग गया अपने पास, ठीक है, अपने पास एक प्रेसिडेंट रूल लग गया तो किसकी गवर्नमेंट आ जाती, पूरी पूरी सेंट्रल की आ जाती। समझ रहे हैं आप, पूरा सेंट्रल का आ जाता। तो आपकी स्टेट एमपी स्टेट सीएम वगैरह का उतना ज्यादा उसमें अमल दखल नहीं रहता। तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, वो जितने भी स्टेट्स को पूरे काउंट करे बाद एक इंडिया बनता, पूरे यूनियन टेरिटरीज पूरे आए बाद जब जाके एक इंडिया काउंट होता। समझ रहे हैं, देखिए यूनियन एंड टेरिटरीज लिखिए, यूनियन एंड टेरिटरीज एरियाज डायरेक्टली कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक दिल्ली, अंडमान निकोबार, आइसलैंड आइलैंड। ओके, यूनियन एंड टेरिटरीज लिखिए, सब जने नोट करिए, यूनियन एंड टेरिटरीज एरियाज डायरेक्टली कंट्रोल, एरियाज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक इंडिया, हैदराबाद, सॉरी दिल्ली, दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ओके, देखिए लाइक एग्जाम्पल बोलने के लिए जो जो है, अभी और भी रहते। ठीक है, ये पूछता दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, होम मिनिस्टर कौन है, दिल्ली के अमित शाह। तुम ना सोचेंगे केजरीवाल के कोई ना कोई होंगे, राघव चड्डा होगा, कुछ भी होगा, बोल के सोचे नहीं, दिल्ली के होम मिनिस्टर अमित शाह थे। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट 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 आर्टिकल में ये भी बोला, इफ द इंडिया एक्वायर्स अ न्यू लैंड इन अ फ्यूचर इट आल्सो है बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि अगर इंडिया आगे चल के अगर है ना, कोई है ना और थोड़ा स्टेट वगैरह को कुछ ले लिया, स्टेट ने अगर आउट ऑफ इंडिया के, जैसा कि आगे चल के एक बार देश आजाद हुए बाद स्टेट सिक्किम, सिक्किम इंडिया का एक पार्ट नहीं था, लेकिन सिक्किम क्या हुआ, इंडिया को सरेंडर हो गया। तो इंडिया को जब सिक्किम सरेंडर हो गया तो सिक्किम भी क्या हो गया, इंडिया का पार्ट हो गया। क्या हो गया, लिख लो, सिक्किम क्या था, पहले इंडिया का एक पार्ट नहीं था, सिक्किम क्या करा, सरेंडर करा, सिक्किम सरेंडर हुए बाद सिक्किम को ले लिया, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा क्राइसिस वगैरह थे। ठीक है, शेड्यूल्स भी पूछता है इसमें, शेड्यूल्स। तो ये जो इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है ना, वो शेड्यूल 1 में आते, लिख लो आप। ऐसा ही पूछ सकता, पार्ट 1 ने बोल के शेड्यूल 1 भी बोल के पूछ सकता। ठीक है, हाँ, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले गोवा भी यूनियन टेरिटरी था, लेकिन अभी नहीं है, गोवा अब एक स्टेट है। ठीक है, थोड़े दिन पहले ही, कुछ वक्त पहले ही हुआ, जैसा कि मैं रिसेंटली एक केस के लिए हम लोग गोवा गए थे, तो वहां पर गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट बोल के लिखे हुआ है, पुराना, गोवा के अंदर। मेरे पेज पे उसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी है, देखो, लीगल लेंस 2025, जाने से पहले पूरे फॉलो कर लेना इसको। तो गोवा में हाईकोर्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट बोल के। तो मैं पूछा वो वहां पर जाके, मतलब क्यों कह, तो बहुत पुराना हाईकोर्ट है वो, तो पहले इन्हें भी यूनियन टेरिटरी में था, अभी खुद का स्टेट होगा ये, तो कोर्ट का नाम चेंज नहीं करे, क्यों बोलता है ना, एक एक है ना, पुराने चीजों को एक मेंटेन करके रखते। लिखो अपना, गोवा में क्या नाम से, गोवा गोवा हाईकोर्ट नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट बोल के लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज के जैसा रहता आप लोगों को। स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में या यूनियन टेरिटरीज में आप होम मिनिस्टर नहीं बिठा सकते, होम मिनिस्टर सेंट्रल का बैठता, सेंट्रल का होम मिनिस्टर बैठता, क्या नाम है, तो ऐसा बहुत पुराना नाम है वो, अभी भी वही नाम रखेगा, मेंटेन करके लेके चल रहे हैं उस चीज को। बॉम्बे हाईकोर्ट ही है शायद, मेरा जहां तक अंदर है। चलिए आर्टिकल 2। Sir, one question. You said that Union Territory is a Schedule 1 part, right? जी So जी it's जी, the part 1 you're saying it's a schedules or it's a part 1? देखिए शेड्यूल पार्ट 1 में 1 to 4 आर्टिकल्स ही आ रहे हैं, शेड्यूल 1 में सिर्फ ये एक ही आर्टिकल आ रहा, समझिए। ठीक है, अभी शेड्यूल 2 वगैरह में कितने आर्टिकल्स आते हैं मैं आपको बोलूंगा। ये शेड्यूल देखिए, पार्ट और शेड्यूल दोनों डिफरेंट है। ठीक है, शेड्यूल 1 के अंदर ये आर्टिकल आ रहा,
पार्ट 1 के अंदर 1 to 4 आर्टिकल्स ही है, शेड्यूल में ज्यादा आर्टिकल्स आते हैं आपको। शेड्यूल्स में आपको जैसा कि 30-40 ऐसा आर्टिकल्स आते हैं आपको टोटल। मैं आपको बोलूंगा कितने आर्टिकल्स है टोटल, मैं आपको बोलूंगा उसके अंदर। बस ट्रिकी देखिए, एग्जाम में क्या रहता है, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते बॉयज। एग्जाम में क्या करते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं थोड़ा घुमा फिरा के पकड़ते अपने को, ठीक है। उसमें क्या बोल के पूछेगा कि पार्ट 1 में ये कितने आर्टिकल्स आते हैं 1 to 4, ऐसा पूछेगा। या फिर क्या बोलते हैं, फर्स्ट आर्टिकल कौन से शेड्यूल में आता बोल के पूछते हैं आपको, समझ रहे, तो फर्स्ट शेड्यूल में आता। तो अपन वो शेड्यूल्स का भी आप लोगों को लिस्ट बना के दूंगा मैं, ठीक है। अभी सेकंड आर्टिकल में जाएंगे, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को क्या बोला था कि सिक्किम, जो अभी मैं बोला था आर्टिकल 2 का है क्या, आर्टिकल 2 क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, एडमिशन का मतलब कोई नया दाखिली होना, ठीक है, कोई नई चीज दाखिल होना, उसमें तो स्टेट, नया स्टेट होना। जैसा कि सिर्फ इंडिया के अंदर कोई स्टेट नहीं, इंडिया के बाहर का भी स्टेट आया तो होता, जैसा कि मैं आप लोगों को सिक्किम बोला था, ठीक है। if a new region of or country wants to join India, parliament can allow it, ठीक है। इसमें देखिए, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो कौन चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, एमपी, पार्लियामेंट ही चेंज कर सकता है, जहन में ये याद रख लो आप लोग, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास राइट है, पहले क्या रहता, लोकसभा राज्यसभा दो रहते, पहले लोकसभा के पास से आपका होना, फिर राज्यसभा के पास जाता, वैसा दोनों, फिर दोनों एक्सेप्ट करे तो होता। फिर जैसे एमएलए वगैरह का रहता, अगर एमएलए अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही तो एमपी एक्सेप्ट कर लिया तो भी बस है, ठीक है। ये चीज जहन में याद रख लो। आप लोग पूछता कि एमएलए अगर है ना, एमएलए है ना इस चीज को है ना राजी नहीं हो रही, लेकिन एमपी इस चीज को है ना अलाउ कर सकते नहीं कर सकते, बराबर एमपी कर सकते, ठीक है। क्या कर सकते हैं, एमपी बराबर कर सकते हैं। जैसा कि एक 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक एक एमएलए बनता और एक पूरा हैदराबाद के एक एमपी बनते, समझ रहे हैं आप। एमपी का जोर ज्यादा रहता, और एमपी क्या करते पूरा अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करते, ठीक है। तो अगर कोई अगर न्यू स्टेट, बॉयज लास्ट बेंच, अगर कोई अगर न्यू स्टेट, अगर कोई बाहर की आउट ऑफ कंट्री का अगर कुछ अगर कंट्री आ रही, छोटी सी कुछ कंट्री या बड़ी कंट्री या कुछ स्टेट बाहर का अपने पास ज्वाइन होना चाह रहा, तो अगर पार्लियामेंट अलाउ कर दिया उस चीज को तो ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, ये जहन में याद रख लो आप, ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट का जैसा अब आएगा आपका आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट है और बहुत अपन उसके लिए बराबर मेजोरिटी होने का रहता उसके लिए। नहीं, उसके मेजोरिटी रहती उसमें, और उसमें क्या रहता मालूम, पूरे मिलके अपने ऑपोजिशन एमपीज और जो आए हुए वो एमपीज मिलके उस चीज का फैसला करते हैं। दूसरी चीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, हाँ आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू, अगर कोई भी अगर नया स्टेट वगैरह अपने पास आना चाह रहा, अपने को ज्वाइन करना चाह रहा तो कर सकता है उस चीज को, लेकिन एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट कौन अलाउ कर सकते हैं, पार्लियामेंट ही कर सकता, ठीक है। अभी आर्टिकल 3 है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। 2013 में तेलंगाना और आंध्र अलग हुए, कैसा हुआ, वो किसके तहत हुआ, आर्टिकल 3 के तहत हुआ, आपका समझ रहे हैं, आर्टिकल 3 के तहत तेलंगाना और आंध्र अलग हुआ, ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट होता। जैसा कि अभी अगर कोई एक बाहर की अगर वो आके अगर मिल जा रहा, अगर कुछ एक स्टेट आके मिल रहा, वो भी एक आर्टिकल 2 और 3 के तहत ही होगा, ठीक है। आर्टिकल 2 और 3 मिलके काम करते, अलग अलग काम नहीं करते। आर्टिकल 2 और 3 अलग अलग काम नहीं करते, आर्टिकल 2 और 3 मिलकर काम करते हैं। जैसा कि अगर कोई बाहर का अगर स्टेट अगर आ रहा आगे यहाँ पर मिलने की कोशिश कर रहा अपनी इंडिया में, तो आर्टिकल 2 और 3 मिलके फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट मिलके नई स्टेट को लेते। अब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट में कैसा रहता है, जैसा कि आंध्र और तेलंगाना अलग हुआ, तो आंध्र और तेलंगाना अलग होने के वास्ते ये पार्लियामेंट में अपने को ये आता, पार्लियामेंट में आए बाद पार्लियामेंट की मेजोरिटी इस चीज को सेलेक्ट करी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती मैक्सिमम, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट करना है या नहीं करना है। तेलंगाना और आंध्र के टाइम पे राजशेखर रेड्डी वो लोग नहीं चाह रहे थे कि, मतलब जगन वगैरह ये नहीं चाह रहे थे कि नया स्टेट बनना, केसीआर का बहुत बड़ा हाथ था नया स्टेट बनने के लिए। तो केसीआर के टाइम पे मनमोहन सिंह पीएम थे, तो पीएम के टाइम पे सोनिया गांधी मनमोहन सिंह लोग के पास जाके केसीआर बहुत ज्यादा है ना, ये चेंज करो बोल के चेंज करे। तो इनका ये माइंडसेट था कि हाँ चलो भाई एक नया स्टेट आया तो आगे चल के इलेक्शन वगैरह अच्छे होते, एमपी वगैरह अच्छे आते, एक सीट वगैरह एमपी की सीट पीएम की सीट वगैरह के लिए अच्छे इलेक्शन होते, बल्कि जब जाके तेलंगाना और आंध्र अलग करे। अभी रॉयल सीमा अलग करो बोल के चल रहा, देखो आंध्र और रॉयल सीमा अलग करो बोल के चल रहा, अभी इस चीज को नहीं छेड़ रहे। तो वो भी अगर आंध्र और रॉयल सीमा को अलग अलग करना है तो आर्टिकल
3 के तहत जाना है, ठीक है। 2 और 3 मिलके ही काम करते हैं, सिर्फ 2 अकेला काम करे जैसा नहीं रहता, 2 एंड 3 लगाना ही लगाना है, ठीक है। देखिए लॉज अंडर द आर्टिकल 2 एंड 3, द आर्टिकल सेज एनी लॉ अंडर द आर्टिकल एंड 3 इज नॉट कंसीडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता ये, समझ रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, जैसा कि अमेंडमेंट बोलते हैं चेंज करने को बोलते हैं, कोई भी एक चीज को चेंज करना, अभी एक बने हुआ है उसको चेंज करना। लेकिन अपन यहाँ पर क्या करें, 2 और 3 नया फॉर्मेशन हो रहा, नया आ रहा, स्टेट नया आ रहा, स्टेट नया बन रहा, ठीक है। नॉट कंसिडर एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। इतना लिख लो बस, दिस आर्टिकल से अंडर एनी लॉ मेड। देखो अमेंडमेंट बोले तो पहली चीज आपने ये समझो, अमेंडमेंट बोले तो कोई चीज पहले से बनी हुई है उसको अपन चेंजेस कर रहे हैं, ये हो गया अमेंडमेंट। लेकिन यहाँ पर 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 में क्या हो रहा, नया स्टेट बन रहा, नया स्टेट ऐड हो रहा, तो इसको नॉट कंसिडर एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, समझ रहे हैं आप। ये ऐड हो जाता, चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा। सिंपली इट्स इजियर टू मेक चेंजेस, सिंपली मेजॉरिटीज इज इनफ, ठीक है। एमपीज की मेजॉरिटीज इतनी भी इनफ है, ये हो गया, ठीक है। आर्टिकल 4 जो है, ठीक है, आर्टिकल 4 2 और 3 को ब्रीफ में समझा रहा, क्या कर रहा आर्टिकल 4, 2 और 3 के पावर्स बता रहा, 2 और 3 को ब्रीफ में समझा रहा। आर्टिकल 4 सेज अबाउट द 2 and 3, 2 and 3 of articles. Any law made under the article 2 and 3 is not considered as the constitution amendment. It is easier to make changes, simply majority is enough. Changing state is easier, no special amendment needs. कोई भी नई चीज के लिए, मतलब अभी ये करना, अभी आर्टिकल्स के हिसाब से 2 और 3 आर्टिकल के अलावा अगर कुछ आर्टिकल की जरूरत पड़ती, क्या पूछ रहा है इन्हें, तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती अपने को, 2 और 3 आर्टिकल ही इनफ है, ठीक है। अमेंडमेंट 4 जो है, अपना आर्टिकल 4 जो है 2 और 3 के बारे में ही समझा रहा। व्हाट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 4 क्या बोल रहा, तो आप लोग बोल सकते हैं 2 और 3 के बारे में एक्सप्लेन कर रहा बोल सकते हैं, वहां पर 2 and 3 एक्सप्लेनिंग अबाउट द 2 and 3 बोल के ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, एक्सप्लेनिंग अबाउट द 1 to 10, एक्सप्लेनिंग अबाउट द 1 to 30, एक्सप्लेनिंग अबाउट द 1 to 40 और एक्सप्लेनिंग अबाउट द 2 and 3। तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करना है एक्सप्लेनिंग अबाउट द 2 and 3, ठीक है। एक मिनट, चलिए उसके बाद आप पार्ट 2 बोल के लिख दीजिए। पार्ट 2 में, पार्ट 2 बोलिए लिख लो, समझा रहा हूं मैं, फिफ्थ अभी सपोर्ट के बारे में बोला। चलिए आर्टिकल 5 जो है अपना, आर्टिकल 5 भाई अपने को बहुत जरूरी है, आप लोगों को जिंदगी भर काम आता है आर्टिकल 5। सुनिए गौर से, अगर किसी का अगर जहन नहीं लग रहा तो उठ के खड़े जाओ आप लोग। खड़े तो क्या रहता, पूरा दिमाग लगता अपना इधर को, यहाँ पर आप पूरा दिमाग लगे हुआ रहता, ठीक है। अब इधर उधर कोई भी मुंडे वंडे रहे उठ के खड़े जाना पड़ेगा, गर्ल्स या बॉयज कोई भी रहने दो। चलिए आर्टिकल 5 किस बारे में, आर्टिकल 5 पार्ट 2 में आता, सिटीजनशिप के बारे में होता, ठीक है। सिटीजनशिप क्या है, हर कोई आज के वक्त में सिटीजनशिप के लिए परेशान है। हर कोई ये डरता है कि भाई एक महीने में अपने घर नहीं है, किराए के घर में रह जा सकते, ठीक है। अपने घर जमीन नहीं है, मसला ने कुछ वक्त के बाद खरीद ले सकते, कहीं भी खरीद ले सकते। लेकिन अगर अपने घर देशीश नहीं है तो क्या होता, जस्ट इमेजिन बर्मा वालों के ऊपर क्या बीती थी। बर्मा जो थे, बर्मा वालों का जब वहां पर क्राइसिस चले, हिंदू मुस्लिम्स का जो भी क्राइसिस थे, तो बहुत ज्यादा बर्मा वाले यहाँ पर आ गए। तो मैं एक बर्मा वाले से एक मुलाकात हुई थी मेरी, उनका नाम है ना, एक सेकेंड, इलियास, इलियास थे। तो मैं उनसे मुलाकात करा, तो मैं पूछा क्या है भाई, क्या है आपका, सुनाओ बोल। तो वो बोले भाई घर नहीं है चलेगा, जमीन नहीं है चलेगा, अगर खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो चलता, वक्त के बाद कुछ ना कुछ अल्लाह बोलते हैं ना, अल्लाह ताला दे देता। लेकिन अगर अपने कहने देशीश नहीं है तो मारे मारे हो जाते अपन, एक जगह के नहीं रहते। Sir, nationality जी, has a nationality. नेशनलिटी, हाँ वही बोलते, सिटीजनशिप बोलते हैं नेशनलिटी। तो अगर नेशनलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जैसा कि नेशनलिटी के बारे में पार्ट 2 नेशनलिटी के बारे में ही पूरा समझाएंगे। जैसा कि
दिस टॉक अबाउट द बिकेम सिटीजन इन 1950. ठीक है, 1950 का सिटीजनशिप कैसा मिला उसके बारे में बात करेंगे. अ पर्सन इफ अ सिटीजन इफ born in India or parents born in India or living in India for a some time. ठीक है, अभी मैं जैसा कि आप लोगों को बोला कि मेरे वालदा वालिद यहाँ पर पैदा हुए लेकिन मैं दूसरी कंट्री में पैदा हुआ, तो मुझे इस बेसिस पे सिटीजनशिप मिल सकती, मेरे वालिदा और वालदा के बेसिस पे मुझे सिटीजनशिप मिल सकती. या फिर मेरे वालिद वालदा यहाँ पर इंडिया में थे लेकिन उन लोग क्या करे, बहुत वक्त 14 साल इंडिया से बाहर रहे और मैं यहाँ पर स्टडीज के लिए, मैं बहुत सारे रहते, देखिए सऊदीया में रहते हैं पूरी फैमिली, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर भेजते इंडिया में. तो मैं इंडिया में यहाँ पर स्टडीज करा, मैं 8-10 साल यहाँ पर रहा, तो उस बेसिस पे भी मुझे सिटीजनशिप मिल सकती. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ वक्त के लिए रहा, लेकिन कुछ वक्त के लिए रहने के लिए आपका जो फैमिली ट्री रहता वो इंडिया में रहना, आपका जो फैमिली ट्री आता वो इंडिया से आना. कहां से आना फैमिली ट्री? इंडिया से. आपके वालिद वालदा दादा दादी ये इंडिया से रहना, जब जाके आप कर सकते, इंडिया की सिटीजनशिप क्लेम कर सकते. केस का बोल वो सर ये आइडेंटिटी प्रूफ क्या रहता है? पहले इसके बारे में इतना ब्रीफ में जाएंगे अपन, उसके बाद थोड़ा. ठीक है, हु वाज सिटीजन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड. ठीक है, अभी 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 अगर अपने पास नेशनलिटी सिटीजनशिप नहीं है तो अपन ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है अपने लिए नहीं है. फिर अपन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के जो फायदे उठाना है, अगर अपन इस चीज का अपने पास नेशनलिटी सिटीजनशिप रहा तो अपन उठा सकते हैं. देखिए आर्टिकल 6 किसके बारे में बोल रहा है आपको. ठीक है, आर्टिकल 6 किसका? सिटीजनशिप ऑफ फ्रॉम द पाकिस्तान. ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करे थे जब अपना है ना पार्टीशन हुआ था, याद होगा आप लोगों को, पार्टीशन हुआ तो यहाँ के मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान के हिंदूस यहाँ पर अपने पास इंडिया आ गए थे. तो आर्टिकल 6 इसी के ऊपर है, आर्टिकल 6 इसी के ऊपर है. ठीक है, तो अपन यहाँ से चले गए सवालों का तो कुछ काउंट नहीं करे है, इसमें आर्टिकल में आगे आगे आके समझा सकते हैं. अगर कोई अगर पाकिस्तानी अगर चाह रहे हैं कि भाई मैं वापस मैं इंडिया को आना चाह रहा हूँ, मैं इंडिया में रहना चाह रहा हूँ, मैं इंडिया में वापस अपनी जिंदगी कर लेना चाह रहा हूँ, तो वैसे हमको भी मिलता एक है, एक बायलॉज है, अपन बताता हूँ मैं आप लोगों को. ठीक है, तो अभी कौन सा 1947 में अपना क्या हुआ था, आफ्टर पार्टीशन द आर्टिकल से those who came to the India can become a citizens with some conditions like registration. जो 1947 में जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे तो वो लोग को भी सिटीजनशिप वो वक्त दे दिए, वो लोग को सिटीजनशिप वक्त दे दिए, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा के दिए. ठीक है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन लगा, जैसे क्या रूल्स और रेगुलेशन देगी कि आप वापस 2 साल 3 साल तक अगर आप यहाँ पर है ना 7 साल तक तुम वापस नहीं जाना पाकिस्तान को, अगर तुम वापस चले गए अगर पाकिस्तान को, फिर तुम इंडिया की सिटीजनशिप फिर तुम क्लेम नहीं कर सकते. ऐसे पार्टीशन से, ऐसे लाइन से. सिटीजनशिप टू द पीपल हु केम फ्रॉम द पाकिस्तान टू इंडिया. एक लाइन ये आर्टिकल 6 क्या कहता, आर्टिकल 6 सेज citizen, okay, citizen give citizenship to the people, give citizenships to the people who come from the Pakistan to India. भाई वो चेयर मिल सकती मेरे को, दियो ना. आज जुमेरात थी ना, था रोजा था. चलिए, अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, अगर मैं वीडियो में दिखा मतलब आप लोगों को पूरा स्क्रीन वगैरह तो शेयर हो जाएगा, आवाज वगैरह भी आ जाएगी. अगर आप लोग बोले नहीं सर वीडियो में आप दिखना वो जरूरी है, वो तो मसला नहीं, आप लोगों के लिए थोड़ी तकलीफ उठा लेंगे. शाह ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नहीं सर. I am waiting for your reply. You can relax, sir. You can sit and let us know. I just want to hear your voice. Okay sir, thank you sir, thank you मैम. चलिए अभी अपन आर्टिकल 7 समझाया मैं आप लोगों को, 6 हो गया ना. ठीक है, आर्टिकल 7 क्या है, मोटी मोटी लाइन में अगर अपन लिखे थे अपोजिट टू द आर्टिकल 6. ठीक है, अपोजिट टू द आर्टिकल 6, people who went to the Pakistan cannot be Indian citizens, but if came back with a permission they can become a citizens. Okay, मैं भी आप लोगों को क्या बोला, जो पाकिस्तान चले गए. अभी अगर वो लोग अगर आना चाह रहे हैं, ठीक है, people who left from the Pakistan lost citizenship, ठीक है, with exceptions. ओके, ठीक है, जो पाकिस्तान चले गए अब आना चाह रहे हैं
तो वो लोग आ सकते, ठीक है। लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स लगाए वो लोग के, ठीक है। थोड़े प्रोटोकॉल्स आप लोग, जैसा कि अभी आप इतने साल रहना यहाँ तक, जब तक आप नहीं रहना आपको गवर्नमेंट जॉब वगैरह जब तक ये टाइम तक नहीं मिलेंगी, आप लोगों के बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलेंगी, ऐसा था। आप प्रॉपर्टी इतनी जल्दी बाई नहीं कर सकते, आपके बच्चे बाई कर सकते, ऐसे प्रोटोकॉल्स लगते पूरे। और कोई भी नहीं आ रहे साहब, ना पाकिस्तान छोड़ के आ रहे ना अपने से कोई भी छोड़ के जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। चले गए होगा बोल रहे। आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 बॉयज, आर्टिकल 8 के बारे में लिख लो। इंडियंस लिविंग अब्रॉड, इंडियंस लिविंग अब्रॉड या गल्फ, ठीक है। इंडियंस, इंडियंस लिविंग अब्रॉड या गल्फ, ऐसा लिख लीजिए आप। ठीक है, आर्टिकल कौन सा बोले भाई अपन? 8 में ना, Indians living abroad. The article is about the Indians living in other countries. If a person of a India origin and living abroad, ठीक है। जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बोला, एक पर्सन हूं मैं, ओरिजिन इंडियन हूं, ठीक है। मेरी बर्थ इंडिया में हुई, या मेरे वालिद वालदा इंडिया के हैं, लेकिन मैं मेरी मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी क्या करा, मैं अब्रॉड या गल्फ में गुजार लिया। तो वो लोगों के लिए भी आर्टिकल 8 के तहत आपको सिटीजनशिप आप क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, इंडियन फैमिली लिविंग इन यूके कैन अप्लाई, ठीक है। अगर इंडिया की पूरी फैमिली अगर वहां पर रह रही तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में एक रूल ये है, बहुत मतलब है ना, अभी जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे कि है ना, इंडिया के पास इंडियन सिटीजनशिप यहाँ की भी है, अक्षय कुमार के पास है ना यूके की इंडियन सिटीजनशिप है, बोलते हैं ड्यूअल ड्यूअल कर सकते हैं, वो भी रह सकता अपने पास, ऐसा नहीं है। उस चीज को मत बताओ, हाँ बता लो, हाँ ऐसे बता लो। उस चीज को अपन ऐसा जहन में रख के, ड्यूअल सिटीजनशिप भी इसी के तहत आती है आप लोगों, ठीक है। अगर आप लोग है ना, अगर आप लोग वहां की सिटीजनशिप वगैरह अगर आप लोग ले भी लिए तो फिर आपको इंडियन सिटीजनशिप भी मिल सकती, ठीक है। एक बात याद रखिए आप, आर्टिकल 1 to 51 क्लॉज ए तक अगर आप लोगों को मुंह जबानी याद रह गए आर्टिकल्स, कोई आदमी आपसे बात नहीं कर सकता। उसके बाद कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आपसे बात नहीं कर सकता, कोई आप पे कोई जाति नहीं कर सकता, कोई आप पे जुल्म नहीं कर सकता, कोई आपको नाहक की तकलीफ नहीं दे सकता। उसके बाद इतनी तो गारंटी के साथ आप लोगों को बात करो। आर्टिकल 1 to 51 ए और प्रीहम्बल, मुझे मुंह जबानी आप लोगों का एकदम सडन टेस्ट लूंगा, मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगा। अभी मैं खड़ा के मैं बोलूंगा कि जैसा कि अब्दुल्ला भाई आप खड़ के आप आर्टिकल 14 के बारे में बोलिए, आप खड़ के बराबर में जो लिखा है वो डेफिनेशन बोलना, और एल्स आप उसके बारे में मेरे को उर्दू में तो भी एक्सप्लेन करना। इतना परफेक्ट रहना अपन। क्यों? कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा क्या? तो हल्लू हल्लू समझा रहा हूं ना मैं आपको। हल्लू हल्लू नहीं, पहले आप लोग समझ लो इसके बारे में, फिर रट्टा मार के याद करेंगे। पहले समझ तो लो। ये लॉ सेट के एग्जाम में पूछता है, बराबर पूछता आपको ये लॉ सेट के एग्जाम में, ठीक है। आर्टिकल 9 नो ड्यूअल सिटीजनशिप, इसमें दे रहा देखो, ठीक है। If a person takes citizenship of another country, they will be lose Indian citizenship. For example, if a Indian become a US citizen, no longer Indian citizenship. देखिए वैसा नहीं रहता। ड्यूअल सिटीजनशिप बहुत सारे जन ले रही, कैसा लेते हैं आप लोगों को, जैसा कि आप सुनिए, आप लोग कैसा लेते हैं आप लोग, सब जने क्या करते हैं, वहां पर प्रॉपर्टी बाई करके रख लेते हैं। प्रॉपर्टी तो आप कहीं भी खरीद सकते हैं, आपके अगर पैसा है तो कहीं भी खरीद सकते हैं, वो प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिल जाती। लेकिन आप क्या करते, वो सिटीजनशिप को अप्लाई नहीं करते। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या करते हैं लोग, अप्लाई नहीं करते। बस जब कभी अप्लाई करती कि आप लोगों को सिटीजनशिप मिल जाती, 10 घंटे में 2 घंटे में मिलती वहां पर सिटीजनशिप। लेकिन कब आप लोगों ने वो क्लॉजेज रहना, जैसा कि आप वहां पर प्रॉपर्टी बाई करके रहना, या आपका ने गोल्डन वीजा रहना, या आपका ने वहां पर गोल्डन क्रेडिट कार्ड आता वो रहना, या जैसा कि यूएस में अलेक्जेंडर का क्रेडिट कार्ड रहना अपने पास, बहुत सारे चीजें ऐसा रहते। तो वो चीजें रख लेते, प्रॉपर्टीज रख लेते वहां के, लेकिन सिटीजनशिप को डाल के नहीं रखते। समझ रही? जब अगर अप्लाई करना है, खुदा ना खास्ता अपन रहता, वीजा तो लगे हुआ रहता, प्रॉपर्टी आप बाई करे फिर वीजा तो लगा के रख लेते बहुत सारे जने। क्या करते उसके बाद, एट ए टाइम आप वहां पर जाते जाके सिटीजनशिप के लिए थे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्टिकल 9 क्या हो रहा है, एक साथ आप 2 सिटीजनशिप नहीं ले सकते। जैसे अगर आपने 2 सिटीजनशिप ले लिया तो आपका इंडिया की सिटीजनशिप चले जाती है आपके पास से, ठीक है। एक पॉइंट लिख जाइए परसेंट, आर्टिकल 9 नो ड्यूअल सिटीजनशिप लिखिए,
आर्टिकल 9 नो ड्यूअल DUAL ड्यूअल सिटीजनशिप. दिस आर्टिकल से लिखिए, दिस आर्टिकल से कोई आर्टिकल 9 कौन है, वो कौन सा आर्टिकल है पूछे तो. मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ मैं जब से आर्टिकल 9 बोल के. इसमें आलम खान के बेटे कौन है? आलम खान के कोई है फर्जन या मुस्तफा खान? नहीं है शाबाश, ठीक है ठीक है. आर्टिकल 9 क्या बोल रहा? नो ड्यूअल सिटीजनशिप. दिस आर्टिकल से इफ अ पर्सन टेक्स सिटीजनशिप ऑफ अनदर. Article 9. आर्टिकल 9 मैम, आर्टिकल 9, आर्टिकल 9. आप लोग ऑफलाइन है ना, आप लोगों को आवाज में अच्छी आ रही ना, आप लोगों को आवाज. आर्टिकल 9 क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, लिखिए फिर एक बार. आर्टिकल 9 सेज दैट if a person take a citizenship of another country, they will lose the Indian citizenship. Okay, क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों को. इंडिया डज नॉट अलाउ अ ड्यूअल सिटीजनशिप. लिखिए भैया. आर्टिकल हालात में नहीं, थोड़ा वक्त हो गया अभी देख. नहीं वैसा नहीं लेते क्या बोलते वैसा नहीं रहता. लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी बाई करके वहां रख लेते, या फिर आपने गोल्डन वीजा बाई करके आप रख लेते, कुछ बाई करके रख लेते. अप्लाई नहीं करते वो लोग, अप्लाई नहीं करते वो लोग. क्यों अप्लाई नहीं करते वो लोग? इसलिए कि जब कभी भी जाए वहां पर अपने पास, इंडिया कैसा नहीं है 10 महीने 15 महीने वहां के गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह से लंबा नहीं की, घंटे 2 घंटे में देते आपको सिटीजनशिप. समझ रहे आप जी भाई? सर लेकिन 5-10 साल लगते बोलते ना सर सिटीजनशिप के इंडिया लिए में, आप जब इंडिया का है वो, इंडिया का है सरकार वो, इंडिया का है सर वहां पर लेकिन नहीं. यूके ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को टाइम लगता बोलते ना सर. नहीं नहीं वैसा नहीं साहब, उसके लिए क्या रहता है, 5 साल 10 साल आपको वहां पर गुजारना पड़ता, आपको एक परमानेंट एक जॉब करना पड़ता, एक व्हाइट कॉलर जॉब करना पड़ता. अगर आपके पास पैसे है तो आप बोलिए, मैं खुद लेके आके दिला देता हूँ. क्यों बोले तो मैं बोलता हूँ आपको कि वहां पर है ना, वहां पर आपके पास है ना, वहां पर प्रॉपर्टी आप बाई कर लिए, या फिर वहां की कोई सिटीजनशिप से आप शादी कर लिए, वहां के कोई NRI से, सॉरी वहां के कोई नेशनल से आप शादी कर लिए, तो आपको वहां की भी सिटीजनशिप मिल जाती. और एक बात, बस बहुत सारे जनों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट रहता. बॉयज सुनिए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्प होता. बॉयज लास्ट बेंच छोड़ो, कुछ भी ना था. जब एक इंपॉर्टेंट एक चीज सुनो आप लोग, खासकर इंपॉर्टेंट है. जैसा कि बहुत सारे मैं देखता हूँ यहाँ पर है ना, जो बच्चे वहां पर बर्थ होता है उन लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट रहता. कैसा, एक चीज समझिए आप, अगर वहां पर अगर आपकी बर्थ हुई तो आप हाफ NRI हो सकते. अगर आप यूके में, अगर आपकी अगर बर्थ हुई, अगर आपके कोई अगर है ना वहां पर अगर बर्थ हुई आपकी, वहां पर कोई पैदा हुए, तो हाफ NRI होते. और बेटा याद रखो, हाफ NRI जो भी रहता है, अगर आप इंडिया आए, अगर आप पाकिस्तान गए, वहां पर आपके साथ कुछ ऊंच नीच हुई, या आपके साथ है ना कुछ बदतमीजी हुई या बदमाशी हुई, तो आपका केस लड़ने यूके से सॉलिसिटर्स आते, ऑस्ट्रेलिया से सॉलिसिटर्स आते. वो लोग केस हैंडल करते, यहाँ के कोई एडवोकेट हैंडल नहीं करते आप लोगों का केस NRI का. जैसा मेरे क्लासमेट्स वगैरह थे, वो लोग का ये इरादा था कि वो लोग अपना है ना लॉ है ना इंडिया में कन्वर्ट करना है, तो वो लोग 12th तक वहां तक पढ़ के, वहां से पढ़ के 5 years यहाँ लॉ करके फिर LLM और बैरेट लॉ वहां पर करने लेते. तो उन लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, तो उन लोगों की फीस भी अलग रहती थी, यहाँ पर अच्छी खासी फीस रहती थी. वो लोग को मतलब हर चीज डिफरेंट रहता था. तो उसके साथ एक कार एक्सीडेंट हुआ, खालिद बोल के नाम होगा. कार एक्सीडेंट हुआ, तो कार एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया था. तो वहां से यूके से सॉलिसिटर आया, इंश्योरेंस कंपनी का केस उन्हें लड़ा, कार एक्सीडेंट का केस उन्हें लड़ा, हिट एंड रन हुआ था, हिट करके भागे थे उसको, उन्हें केस लड़के पूरा क्या बोलते हैं आपका पूरा पैसा जो कंपनसेशन वगैरह जो मिलना बोलते ना, वो पूरा का पूरा पैसा उनकी फैमिली को दिला के गया. इतना रहता आप, इतना इतना फायदा रहता. लेकिन एक जहन में ये रखिए आप, एक चीज आप जहन में ये रखिए, अगर आपने ब्रिटिश पासपोर्ट है फिर आप यहाँ पर भी सिटीजनशिप के लिए डाल सकते हैं. आप यहाँ पर हेरिंग कर रहे हैं बोल के, पासपोर्ट से सिटीजनशिप नहीं मालूम होती, बस पासपोर्ट से 0.10% मालूम, 10% मालूम होता है कि हाँ भाई नो यहाँ के सिटीजनशिप है, पासपोर्ट से नहीं होता, वैसा नहीं रहता. अब है ही नहीं. हाँ, अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल Article 10. आर्टिकल यस मैम, आप कुछ बोल रहे थे. ठीक है, आर्टिकल 10 किसके बारे में बोल रहा है? आर्टिकल 10 5 to 9 के बारे में ही बोल रहा है. जैसे अपन आर्टिकल 4 किसके बारे में बोल रहा था? 2 and 3 के बारे में जैसा बोल रहा था. आर्टिकल 4 आर्टिकल 10
ठीक है, आर्टिकल 10 5 और 9 के बारे में बोल रहा है। इसमें 5 और 9, इफ द सिटीजन अंडर द आर्टिकल 5 to 9 विल बी कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन अनलेस लॉ इज चेंज। ठीक है, अभी जैसा मैं आप लोगों को बोला था आर्टिकल 1 to 4 में अमेंडमेंट्स का उतना नहीं होगा। अमेंडमेंट्स कहाँ अमेंडमेंट्स हो गए? आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट्स हो गए, जैसा कि दो स्टेट्स में से एक स्टेट बनना, ये हो गया आर्टिकल 3 में होगा। लेकिन आर्टिकल 5 to 10 में जो है वो कुछ भी रूल्स, अगर ये अमेंडमेंट कुछ आया आर्टिकल 5 to 10 तक, आर्टिकल 5 to 10 तक अगर अमेंडमेंट आया, कुछ भी चेंजेस हुए, जैसा कि मैं भी आपको बोला पार्लियामेंट के पास पूरा राइट है कि चेंजेस कर सकते हैं अमेंडमेंट में। अब इन्होंने एक अमेंडमेंट में चेंज करेगी, ठीक है भाई, ड्यूअल सिटीजनशिप हम लोग अलाउ कर दे रहे, क्या कर रहे हैं ना, तो ये चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड अमेंडमेंट, दिस इज कॉल्ड अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 5 to 9 जितना भी चला, आर्टिकल 10 इसके बारे में हो रहा, 5 से 9 तक आर्टिकल जो कुछ भी ऐसी कंटिन्यू चलेंगे, ये लोग को है ना, इसी के बेसिस पे लोगों को सिटीजनशिप वगैरह मिलती बोल के, हाशमी इसी के बेसिस पे सिटीजनशिप मिलती बोल के ये लोग का कहना है। ठीक है, और आर्टिकल 10 यही बोला 5 to 9, सुनो फिर एक बार समझा रहा गौर से। आर्टिकल 10 ये बोला 5 to 9 आर्टिकल्स के तहत आप लोगों को सिटीजनशिप मिल सकती है, आप लोग क्लेम कर सकते हैं सिटीजनशिप। कब तक? अगर कुछ भी चेंजेस, अगर इसमें अगर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, तो चेंजेस अगर हो गए तो फिर वो चेंजेस के हिसाब से चलना। ठीक है, आर्टिकल 10 ये होगा। अब हम लोग जाएंगे आर्टिकल 11 में। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 11 किसके बारे में बोल रहा, देखिए। Sir, can you change the screen? It's showing Article 9. अभी आप लोग स्क्रीन कुछ भी ना बता रहा। It's showing, sir. No, Article 10, about Article 10. ये जी आर्टिकल 11 यही है। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 11 gives a full power to the parliament and make rules about the citizenship. Simply meaning parliament can decide who is the citizen, how a person can become a citizen, how a person can lose a citizenship when article 11 is needed. ठीक है, article 5 to 10 only talks about the citizenship at the beginning 1950, but about the people born after the 1950 NRIs who are Indian citizen, people who want to came to citizenship, for all those situations we need to new rules. That is why article 11 is very important. ठीक है, आर्टिकल 5 to, जैसा कि पूरे आर्टिकल से देखिए, जैसा कि आर्टिकल बॉयज आर्टिकल 1 to 10 जितने भी आर्टिकल्स है, जैसा सिटीजनशिप आ रहा है उसमें, और अपना यूनियन टेरिटरीज वगैरह भी आ रहा, समझ रहे हैं आप। अब जैसा कि यूनियन टेरिटरीज क्यों ले रहे हैं मोहम्मद सर, आप इसमें सोचे तो आप इंडिया का, आपको मैप भी बराबर मालूम रहना है, आप कहाँ पर रहते हैं, आपको ये भी क्लेम करना रहता कि मैं हैदराबाद में रहता हूँ, हैदराबाद में मैं, मेरा चन्ननगुट्टे में घर है, मेरा चन्ननगुट्टे में 18-10-43/4 5,05,5 मेरा पिन कोड है। तो ये नॉलेज के हिसाब से ही तो आप लोग क्लेम करेंगे ना। अगर आप अभी आपको कोर्ट पूछा, ठीक है भाई आप एड्रेस क्या है, आप रहते कहाँ, भाई पूरे जने उठ के खड़े जाइए भाई। Sir, can you आर्टिकल explain 11, about Article 10 once again? आर्टिकल 11, तो आर्टिकल 11 में कैसा रहता है, जैसे कि आर्टिकल 1 to 4 और बाकी का 5 to 9 जो आर्टिकल्स है, वो आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा बात है ना 1950 से पहले की बारे में बात करेंगे। 1950, जैसा कि 1947 में क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, वो अब 1947 में पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद भी 2-3 साल के बाद बहुत सारे अगर आना चाह रहे थे तो 1950 रख दिया उसको। ठीक है, मोटा मोटा 1950, तो 1950 से पहले के बारे में बहुत ज्यादा बात हुई, लेकिन 1950 के बाद के लोग कैसा करेंगे उसके बारे में बहुत कम बात हुई, जैसा कि अब्रॉड, लिविंग इन अब्रॉड और गल्फ, उसके बारे में जो बात करते हैं, थोड़ा आर्टिकल 11 वही उसके बारे में ब्रीफ में है। बोलिए जी। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता, कैसा आपको आर्टिकल 11 के अंदर ब्रीफ में मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पेज नंबर 1 से, जैसा मैं भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बुक बताया, आर्टिकल 1 to 11 खाली कितने पेजेस में मालूम आपको, 200 पेजेस में आर्टिकल 1 to 11 है, खाली कितने, 200 पेजेस में आर्टिकल 1 to 11, एकदम बहुत ब्रीफ में पूरा साइटेशंस, पुराने केसेस, कौन से केसेस में कौन सा है ना, कैसा कैसा सिटीजनशिप को है ना केस लड़े, लड़के कैसा सिटीजनशिप को क्लेम करे, वो पूरे केसेस है। तो अपने को उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं आप लोगों को एक शॉर्ट नोट एक बना के दिया, मैं उसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल में कर ले सकते। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, एक बार आप आर्टिकल 11 बात करिए।
आर्टिकल ठीक है, पार्लियामेंट कंट्रोल्स द सिटीजनशिप, पार्लियामेंट कंट्रोल्स सिटीजनशिप रूल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, लिख लीजिए आप। जैसे आर्टिकल 11 इज स्ट्रॉन्गर देन आर्टिकल 5 to 10। आर्टिकल 11 सबसे ज्यादा मजबूत है। कौन से किससे किससे ज्यादा मजबूत है? 5 से 10 जो आर्टिकल्स है, 5 to 10 आर्टिकल्स है, उसके सबसे ज्यादा मजबूत है। आर्टिकल 11 is stronger than the article 5 to 10। if the parliament make a new law it will be applied even if the changes old rule, ठीक है। अगर पार्लियामेंट अगर नया लॉ लेके आई, पार्लियामेंट नया लॉ आर्टिकल 11 के तहत ही लेके आ सकती। क्यों? अगर अगर है ना आर्टिकल 5 to 11 के अगर कुछ चेंजेस हो, अगर उस चेंजेस के बारे में अगर आप लोगों को समझना है, उसके बारे में बात करना है, या अगर आप लोग उसके चेंजेस को अपना एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 11 के पावर्स है, ठीक है। आर्टिकल 11 के पास पार्लियामेंट, आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चेंजेस कैसा करना है, और वो चेंजेस करे बाद है ना, अमेंड होए बाद आप लोगों को फॉलो भी करना रहता, ठीक है। आप लोगों को अभी भी अब 1950 के बाद ही ज्यादा इसको प्रीफर दिया समझो। सर जी सर साहब, लेकिन आर्टिकल 11 में इसमें कि ने क्या बुरा बोलते हो, आर्टिकल 11 गिव्स द फुल पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक रूल्स अबाउट सिटीजनशिप बोल रहा ना सर इन्हें, तो साहब मैं इनका वही खाली बोल रहा हूँ ना, सिटीजनशिप। 5 to 11 मैं क्या बोला आपको, जैसे कि आर्टिकल आर्टिकल है ना 5 to 10 के तहत अगर इन लोगों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्टिकल कौन सा है, बोलते तो आर्टिकल 11 है। और 5 to 10 मैंने आर्टिकल मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है सर, तो अगर पार्लियामेंट को अगर कोई नया रूल बनाना है तो उसको आर्टिकल 11 को फॉलो करना पड़ता है या दूसरा आर्टिकल है उसके लिए? आर्टिकल 11 ये पूरे 5 to 10 आर्टिकल्स को पावर देता, समझ रहे हैं आप। अच्छा जी। अब आर्टिकल में आप समझिए कि अब मेरे को है ना, अब आपका नाम क्या है? मेरा नाम जलाल था। जलाल साहब, अब समझिए, अब आप है ना बहुत ज्यादा वक्त है ना क्या बोलते हैं अपने गल्फ कंट्री में गुजार के आए। अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आके आप है ना एक बहुत बड़ा केस बुक कर दिए कि आपको सिटीजनशिप वगैरह नहीं दे रही। तो वो केस के तहत क्या होता मालूम, एक और के केस खुल जाता कि भाई ये अभी इन्हों इतना टाइम गुजार के आएंगे, वालदा वालिद भी यहाँ के नहीं है, इनका मतलब इनका कुछ बैकग्राउंड है ही नहीं, तो इनको कैसे आप सिटीजनशिप दे सकते? तो जब बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता पार्लियामेंट को कि ये एक सिटीजनशिप का अमेंडमेंट लाओ, इस पे आप लोग सोचिए, इस पे आप लोग वर्क करिए। तो आर्टिकल 3 के तहत आपका केस चल रहा था, लेकिन अमेंडमेंट आएगा आर्टिकल 11 के तहत, पावर्स लेके आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट करेंगी पार्लियामेंट, समझ रहे हैं आप? जी हाँ साहब, समझ गया। जी आर्टिकल 3, अब आर्टिकल 3 में आपका केस चल रहा समझो, लेकिन आर्टिकल 3 को पार्लियामेंट को अमेंड करना है, चेंज करना है, तो पार्लियामेंट आर्टिकल 11 से पावर लेके आर्टिकल 3 को चेंज करेंगी। अब देखिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक मूवी का, जैसा कि है ना ये एक मूवी थी देखिए आमिर खान की, जो बाहर एलियन वगैरह रहते हो हाँ, तो उसके उसके उसमें क्या होता, उन्हें एक केस होता, खाली एक केस डलता, लेकिन उसके बाद कितने की केसेस आ जाते। ये मतलब जैसा कि अब अभी सॉरी अक्षय कुमार की जो ओएम गॉड वगैरह जो मूवी थी, उन्हें सिर्फ एक ही जना केस डालता, देखिए आप, एक ही जना केस डालता, लेकिन उसके जैसा कितने जने इन्फेक्टेड है, वो कितने जने वो केस को लेके इन्फेक्टेड है, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा मिलके फिर एक पीआईएल बनता। पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या बनता? पीआईएल का फुल फॉर्म लिख लिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो केसेस बनते हैं आपके, तो पीआईएल के तहत ही बनते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बैठिए जब्बार, बैठो, बोलिए, ठीक है। अभी जैसा कि रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग सिटीजनशिप रूल्स कीप चेंजिंग विद टाइम, लाइक एनआरआई, ओसीआई। ओसीआई के बारे में किसी से मालूम है? ओसीआई कार्ड बोलते देखिए, खासकर जैसा कि ओसीआई वगैरह के ना बहुत वक्त तक अपने फैमिली वाले सऊदी दुबई में रह गए, तो एक ओसीआई कार्ड बनाओ बोलते हैं। ओसीआई स्टैंड फॉर यही रहता आपका, क्या बोलते हैं अपने सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, समझ रहे हैं आप? हाँ इन्हों यहाँ के सिटीजनशिप है, लेकिन इन्हों यहाँ पर हो रहे हैं बल्कि ओसीआई कार्ड बनता आपके पास, आपकी बल्दिया में, ठीक है। ओसीआई क्या रहता है देखिए, ओसीआई जैसा कि अभी 1950 के बाद के जो चेंजेस है, बॉयज जब बार मूव 19 ओके 1915 के बाद जो चेंजेस है, जैसा कि एनआरआई, हाफ एनआरआई, जैसा बोलते देखिए,
ठीक है। और क्या बोलते हैं अपने, अभी जैसा कि मैं बोला ब्रिटिश पासपोर्ट है लेकिन उन्हें है इंडियन, इंडिया के, उनके वालदा वालिद यहाँ के, तो क्या होगा, हाफ एनआरआई होगा। तो ठीक है वैसा। और ओसीआई कार्ड हो गया। ये सब चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, आर्टिकल 11 के थ्रू होते हैं। इनकी बदौलत पूरे एक चेक। ठीक है। आर्टिकल 11 गिव कंप्लीट पावर टू द पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड चेंजेस सिटीजनशिप लॉ इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिख लो। आर्टिकल 11 गिव द कंप्लीट पावर टू द पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड चेंजेस सिटीजनशिप लॉ इन इंडिया। फिर एक बार और मैं हेलो। ठीक है। आर्टिकल 11 gives the complete power. Article 11 gives the complete power to Parliament to control and change. To Parliament to control and change citizenship law in India. Citizenship law in India. Okay. Citizenship law in India. तो अभी आप लोगों को कुछ भी रिगार्डिंग अगर डॉट्स वगैरह है तो आप लोग कंप्लीट रख लीजिए। 2 मिनट्स में आऊंगा मैं डॉट्स वगैरह क्लियर करने के लिए। उसके बाद सुजात सर क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। कुछ डॉट्स वगैरह तो लिख के रख लीजिए। ऑनलाइन वाले आप लोग भी रेडी रहिए। आप लोग से पूछ लेते हो एक सेकंड पहले ऑनलाइन वालों का कंप्लीट करके आप लोग से बात। फोन में ऑनलाइन खुल गया। पार्लियामेंट को ऑर्डर अभी पूछना। चलो एक बार रिवाइज करो अपना यही चीज को, डॉट वगैरह तो गलत अपना चलो पहले बंद करो। किसके पास हुआ है चलिए गर्ल्स मूव। डॉट है तो बेटा बाहर वेट कर दो। कुछ आप लोग कुछ है क्या है आप लोग करके बोलो। आई का टेंडेंसी टू रिजेक्ट करो। कौन तरह की बदमाशी है कुछ है वो डॉट पक्का है याद है एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखते हुए ऐसा है समझ आया नहीं 15 मिनट ब्रेक दे नहीं चलो स्टॉप द ऑनलाइन वालों को वेट करो यहां पे जा रहे आप बोलियो भाई कल करेंगे ना आधा घंटा ले लियो ये वही भैया ये क्या बोले नहीं उसका भी सेम इसी ना कर दो ठीक काला आने तो ऑर्डर दे यार भाई बॉटल यार चलिए आप लोग अच्छे हो निकल आए यार Sir, may I know the daily timing for online classes? I have one.